روحا نے مروان پر گاڑی لینے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا اور وہ اس معاملے میں حق بجانب بھی تھی۔ مروان جس حساب کتاب سے کماتا تھا اس کے لیے گاڑی لینا کوئی بہت زیادہ مشکل بات نہیں تھی، اور وہ جان گئی تھی کہ مروان خود سے کبھی بھی اپنے گھر والوں کے آگے اسٹینڈ نہیں لے گا، سو اسے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس دن بھی مروان دوپہر میں گھر آیا تو زویا نے آواز دے لی، مروان ہیٹر خراب ہو گیا ہے، وہ تو ٹھیک کروا دو۔ بھابھی ابھی پرسوں تو اس میں راڈ ڈلوایا تھا، بچوں نے خراب کر دیا ہے دوبارہ، وہ بولی۔ اس سے پہلے کہ مروان کچھ کہتا روحا نیچے اتر آئی۔ بات سنیں زویا بھابھی، ہم نے 2 مہینے تک گاڑی لینی ہے، پرسوں فرحان بھائی آئیں گے تو ان سے کہیے گا ہیٹر ٹھیک کروا دے، ویسے بھی دسمبر میں ہیٹر چلانے والی ٹھنڈ نہیں پڑتی، وہ بولی اور مروان کا ہاتھ پکڑ کر اوپر لے گئی۔ زویا بس کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ چند دن بعد ایسا ہی جواب اس نے نمرا کو بھی دیا تھا۔ 2 ہفتے بعد رابعہ بھی آ گئی۔ اس کا شوہر لامحدود ہی مدت کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ مروان، مجھے 5,000 دے کر جانا۔ اس صبح وہ اوپر آئی تھی۔ وہ کیا کرنے ہیں؟ سوٹ لینا ہے، ابھی چند دن پہلے تو تمہیں شاپنگ کرائی تھی۔ وہ سر پیٹ گیا۔ وہ میرے سسرال میں شادی ہے تو شادی والے کپڑے پہن لو، وہ کون سا پرانے ہو گئے ہیں، ابھی تو میں نے بھی سردیوں کے کپڑے نہیں لیے، ویسے بھی ہم نے گاڑی کے لیے سیونگ اسٹارٹ کی ہوئی ہے۔ روحا نے اس کا منہ بند کروایا تھا۔ وہ بس اسے گھورتی ہوئی چلی گئی، اور اس سب کے دوران روحا کو اندازہ نہ ہوا کہ وہ کس کس کو دشمن بنا رہی ہے۔ ولید اکیلا نہیں آیا تھا، اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس جیسے انا پرست تھے، بھلا کہاں ساس سسر کی باتیں برداشت ہونی تھی۔ زہیب ان تینوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر آ گیا۔ چائے بناؤں؟ ہنا نے پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بھابھی ان کمینوں کے لیے چائے بنانے کی، دفعہ مارے۔ زہیب کو کچھ زیادہ ہی غصہ تھا۔ ولید بھی آئے ہیں؟ موبرا اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ خبردار جو تم اندر گئی تو۔ زہیب نے اسے آنکھیں دکھائیں، وہ بس ان دونوں کو دیکھ کر رہ گئی۔ بھابھی، معاملہ زیادہ ہی نہ خراب ہو جائے، وہ ڈر رہی تھی۔ تم شکر کرو شعیب یہاں نہیں ہے، ورنہ تو انہوں نے ولید کا گریبان پکڑ لینا تھا، ہنا نے کہا۔ آبدہ اور حسیب خان دونوں اندر چلے گئے۔ ہاں جمائی راجہ، انہوں نے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انکل مبرا کو بلائیں، میں اسے لینے آیا ہوں، مجھے ایک ارجنٹ میٹنگ پر بھی جانا ہے۔ وہ فرعون بنا بیٹھا تھا۔ میں نے کہا تو تھا کہ وقت نکال کر آنا، وہ بولے۔ خان صاحب آخر ہو کیا گیا؟ مبرا کے سسر نے کہا۔ چودھری، کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ کل میری اکلوتی بیٹی، بے یار و مددگار، تنہا تمہارے گاؤں جانے والے چوراہے پر 100 مردوں کے بیچ بے ہوش ہو گئی تھی، اور تمہارے اس بیٹے کو اس بات کی رتی برابر بھی شرمندگی نہیں ہے۔ حسیب خان کی آواز اونچی ہو گئی۔ او، نہیں پتا چلا اسے؟ وہ کون سا یہاں تھا؟ شمیم نے کہا۔ بہن، 3 جوان لڑکے ہیں آپ کے گھر، اسے کوئی گھر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس بغیرت نے اسے یہاں کا کالج سلیکٹ کیوں نہیں کرنے دیا۔ آبدہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ آنٹی جی، ذرا تحمل سے۔ ولید کو غصہ آ گیا۔ کون سا تحمل؟ شادی کے محض 4 ماہ بعد ہی کیا شکل بنا دی ہے تم نے میری بچی کی، کہاں سے لگتی ہے وہ ایک کالج لیکچرر؟ آبدہ نے چیخ کر کہا۔ اب اس کی شکل ہی ایسی ہے تو میں کیا کروں؟ ولید کی بات پر انہیں پتنگے لگ گئے۔ تو پھر شادی کیوں کی تھی اس کم شکل لڑکی سے؟ تب تو نوکری نظر آ رہی تھی اس کی، ہے نا؟ آبدہ نے کہا۔ انکل جی، میں یہاں یہ فضول کی بکواس سننے نہیں آیا۔ مبرا نے جانا ہے تو چلے، اگر نہیں جانا تو یہاں بیٹھی رہے۔ وہ تنک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مبرا کہیں نہیں جا رہی، جب دماغ عرشوں سے نیچے آئے تو آ کر لے جانا اسے۔ آبدہ نے انہیں باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکلا تو روحا کسی سے کال پر مصروف تھی۔ وہ ایک نظر اس کے متفکر سے چہرے کو دیکھتے ہوئے بستر میں گھس گیا۔ روحا نے کچھ دیر بعد کال کاٹ دی۔ کس کا فون تھا؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ مبرا کی کال تھی۔ مروان، یہ ولید احمد تو بڑا ہی کمینہ نکلا، روحا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مروان نے اسے اپنے ساتھ ہی کمبل میں آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دوپٹہ صوفے پر اچھالتے ہوئے اس کے ساتھ ہی اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ انتہائی 2 نمبر بندہ ہے، مروان نے کہا۔ مبرا کو بہت سمجھایا تھا سب نے، میں نے، سعد نے، اس کے گھر والوں نے۔ میرا خیال ہے وہ ولید کی سابقہ منگیتر سے بھی مل کر آئی تھی، لیکن پتہ نہیں اس کے دماغ پر عشق کا کیسا بھوت سوار تھا کہ اس نے کسی کی نہیں سنی، روحا نے کہا۔ محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ مبرا کے ابو میرے ابو کے دیرینہ دوست ہیں۔ جب اس کا اور تمہارا BS مکمل ہوا
तो अब्बू तो मेरी और उसकी बात पक्की कराए थे। मुरवान ने उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। रोहा हैरान रह गई। सच में? हाँ, और मुझे बस आकर बता दिया। मेरी तो जान पर बनाई। बड़ी मुश्किलों से इनकार किया था अब्बू को, और बड़ी जान जोखों में डालकर पाया था तुम्हें। रोहा को सब याद आ गया था। जब बीएस मुकम्मल होते ही मुबरा ने उससे एक रिश्ते का जिक्र किया था। वो मुरवान का रिश्ता था। मुबरा ने भी बड़ी मुश्किलों से अपने घर वालों के खिलाफ जाकर वलीद से शादी की है, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं करता उसके साथ। अभी एक हफ्ते पहले वो सड़क किनारे बेहोश होकर गिर गई, बिल्कुल अकेली, और उसको रत्ती भर शर्मिंदगी नहीं है। रोहा, वो इंसान सरासर अपनी जात से मोहब्बत करने वाला बंदा है, बस वो और उसकी पर्सनैलिटी। मुरवान ने उसके बालों में चेहरा छुपाया था। पता है, साद मुबरा से शादी करना चाहता था, शायद कहा भी था उसने, लेकिन मुबरा को बस वलीद ही नजर आ रहा था। रोहा तासुब से बोली, खुदा उसके हक में बेहतर करे, लेकिन वलीद से किसी अच्छे की उम्मीद तो नहीं है। मुरवान पूरी तरह उस पर हावी हुआ था। बेचारी इतनी दूर जाती है, वो भी प्रेगनेंसी के साथ। रोहा को सच में अफसोस हो रहा था। मुरवान बस उसकी अदम मुदाखलत का फायदा उठाते हुए उस पर हावी होता चला गया। वलीद पुत्र, गल सुन मेरी। वो अपने कमरे में था जब शमीम ने उसे आवाज दी। वो उठकर बाहर चला आया। वहां उसके अब्बू और अलमास भी बैठे थे। पुत्र, जाके उसे ले आ। आस पड़ोस की औरतें बातें करने लगी हैं। वो बोली। वलीद ने इस एक हफ्ते में मुबरा को कोई कॉल भी नहीं की थी। अम्मी दफा करे, पड़ा रहने दे वहीं। मुझसे नहीं होती बर्दाश्त उसकी माँ बाप की बेसरुपा बातें। वो झल्ला कर बोला। पुत्र, महीना खत्म होने वाला है। नए महीने के खर्चे कौन उठाएगा भला? अगले महीने इरम की तारीख भी रखनी है। राशन, बिजली का बिल, सब्जी का बिल कहाँ से करेंगे? शमीम कहती चली गई। कर लेंगे, वो बोला। सिलेंडर भी खत्म हो गया है वलीद, और मेरे से तो नहीं बनती लकड़ियों पर हांडी। काम वाली को भी पैसे देने हैं, अलमास ने कहा। अम्मी, मेरा दिल नहीं करता वहां जाने को। वलीद तंग आया पड़ा था। पुत्र, अकल से सोच। सोने की मुर्गी है वो। बस दबा कर रखा कर, और यहां से तो कभी उसका ट्रांसफर ना होने देना। बस अपने काबू में करके रख उसे। सारा खर्चा वही उठाती है, उसके बिना क्या करेंगे हम? एक तेरी तनख्वाह से कहाँ गुजारा होता है? शमीम कहती चली गई थी। वलीद बादले नख्वास्ता सा उठ खड़ा हुआ। 2 दिन बाद उसे मुबरा की कॉल आई थी। बस ये वक़्त है मेरी, वो रुंधियाई हुई आवाज में बोली। तुम्हारी माँ ने माँ बहन एक कर दी मेरी, वो बोला। वलीद, वो मेरी माँ है। गुस्सा आ गया था उन्हें। मैं वहां चौक पर गिरकर बेहोश हो गई थी। कोई मुझे लेने नहीं आया था। अगर जुहेब ना आता तो मैं शायद वहीं मर जाती। मुबरा कहती चली गई। यार, मैंने कौन सा जानबूझकर किया। अच्छा, अब आ जाएं, वो एक लंबी सांस भरते हुए बोली थी। उसे बस यही डर था कि आबदा और वलीद को एक साथ गुस्सा आ गया तो काम ज्यादा खराब हो जाएगा। अभी तो सिर्फ उसके घर वालों को वलीद के बस उसके इतनी दूर जॉब वाली हरकत का ही पता था। अगर कहीं उसकी मारपीट और तशद्दुद का पता चल जाता तो तूफान ही खड़ा हो जाता। और फिर अभी शुएब भी यहाँ नहीं था। उसने वीकेंड पर आना था, और मुबरा जानती थी कि वो आ गया तो फिर वलीद की अच्छी ही तबीयत साफ कर देगा। सो वो जल्द अज जल्द इस मसले को हल करना चाह रही थी। मैं आ तो जाता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप को जरा समझा देना। उसका क्रोफर अभी तक वैसा ही था। आप आए तो सही। वो कॉल काट गई थी। वो शाम टाइम आ गया। अम्मी प्लीज, हाथ जरा हौला रखिएगा। उसे क्या पता था कि मेरी तबीयत अपसेट हो जाएगी। प्लीज। वो मुसलसल आबदा की मिन्नतें कर रही थी। मुबरा, एक बार समझा तो लेने दे उसे। वो आजिज़ आ गई। अम्मी, वो फिर गुस्सा करेगा अम्मी। उसे आने वाले वक्तों से भी डर लग रहा था। वलीद तो उसे धुनक कर रख देता था। अब्बू, उसे कुछ न कहना प्लीज। हसीब खान की अलग से मिन्नतें। और जुहेब को तो उसने घर ही ना आने दिया, बस खुद ही वलीद के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। आबदा भला उसे क्या कहती? जब मुबरा ने ही उन्हें मजबूर कर दिया था, वो उसे कुछ कहने ही नहीं दे रही थी। आइंदा ख्याल रखूंगा अंकल, ये वाहिद जुमला था जो उसके मुंह से निकला था। हसीब खान बस तासुब से मुबरा को देख कर रह गए। वो उसे वापस ले गया था, और वो जानता था कि मुबरा उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। सो उस रात उसे ज़िबह करने का मन तो बहुत था उसका, लेकिन बस अपने फायदे का सोचकर उसे जिंदा छोड़ दिया। मुबरा की वो हालत थी कि उसे सांस भी नहीं आ रही थी। सही मुआयने में उसे अपने जिस्म का एक एक हिस्सा दुखता हुआ महसूस हो रहा था। वो बस रोती ही रह गई,
और वलीद अहमद ने अपना सारा गुस्सा वहशत की सूरत उसके वजूद पर निकाल दिया। वलीद प्लीज, और नहीं, मैं मर जाऊंगी प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरी इस कदर इंसल्ट की है तुम्हारे माँ बाप ने कि हद नहीं। समझते क्या हैं वो खुद को। वलीद की जुनूनियत ने उसकी चीखें भी घोट दी थी। मुबरा, जरा 10,000 देना मुझे। वो उस दिन ऑफिस से छुट्टी करके बैठा था। क्यों, क्या करना है? यार, एक बंदे ने बहुत तंग किया हुआ है। आपकी अपनी सैलरी किधर गई? अभी आज 6 तारीख है। वो हैरानी से बोली। यार, 100 बखेड़े हैं मेरे, इधर उधर लग गए बस। वो तेजी से बोला। वलीद, मेरे पास नहीं है इतने, अभी बिल देना है बिजली का। मुबरा, मेरे साथ बकवास न किया करो, 10,000 दो। वलीद ने उसका बाजू पकड़कर झटका था। मुबरा ने मजबूरन उसे 10,000 दे दिए। चंद दिन बाद फिर से पैसों का तकाजा। वलीद, मेरे पास क्या कारून का खजाना होता है? वो भड़क पड़ी। यार, मेरे पास किराया नहीं है मुबरा, वो बोला था। मुबरा बस उसे देख कर रह गई। कुछ दिन बाद वलीद ने ऑफिस से 15-20 दिन की छुट्टी ले ली। वलीद, मैं कैसे जाया करूंगी? मुबरा की जान पर बन आई थी। यार, बस 15 दिन की तो बात है, मुझे रेस्ट करना है थोड़ा, शदीद थकन हो गई है इतना सफर कर करके। मैं भी तो करती हूँ, वो भी इस हालत में। तुम हर बात में बहस क्यों करती हो? वो तड़क पड़ा था। जैसे तैसे उसका जाना भी बस के जरिए ही होने लगा। शदीद सर्दियों में तो उसे लग पता गया। जब वो वलीद से कहती कि मुझे रिक्शा लगवा दे, तो वो आए बाएं शाई करने लगता। रफ्ता रफ्ता उसका स्टॉप तक जाना भी मुश्किल हो गया। वलीद तो बिस्तर से ही नहीं निकलता था। दोनों छोटे देवर भी कहीं कतरा जाते। इतनी सर्दी में भला कौन इसकी ड्यूटी देता? उसे लग पता गया था। हसीब खान का उसके बाद 2 बार फोन आया। उन्हें सब पता था। आए रोज लोग उन्हें कहते कि मुबरा सुबह शाम स्टॉप पर खड़ी होती है, कभी रिक्शा पकड़ती है, कभी बस पर जाती है, कभी तो पैदल ही गांव जाती है। उस दिन भी उसे आपदा का फोन आया था। मुबरा, स्टॉप तक कौन छोड़कर आता है तुझे? अम्मी, वलीद छोड़ाते हैं। फिर से झूठ। झूठ ना बोल लड़की, रिक्शों पर धक्के खाती है ना इस हालत में। वो बोली। नहीं अम्मी। झूठ बोल बोल कर वो भी थकती जा रही थी। मुबरा, मेरी बात सुन, हम लोग भी इसी शहर में रहते हैं। कल काशिफ मिर्जा ने देखा है तुझे स्टॉप पर खड़े रिक्शे के इंतजार में। उन्होंने खुद हसीब को बताया है। आपदा कहते कहते रुकी। मुबरा, जुहेब फिलहाल फारिग ही होता है। तेरे अब्बू कह रहे हैं कि वो तुझे सुबह शाम तेरे घर से लेकर कॉलेज तक छोड़ भी आया करेगा और ले भी आया करेगा। वो बोली। अम्मी, रहने दे, मैं कर लूंगी मैनेज। वो मना कर गई। उसे पता था कि वलीद किसी सूरत नहीं मानेगा, और ऐसा ही हुआ। वलीद सुनते ही हत्ते से उखड़ गया। तुम्हें जरूरत ही क्या है आए रोज उनके आगे अपने दुखड़े रोने की? रोज तुम अपनी माँ को कॉल करके बैठी होती हो। सबसे पहले तो मोबाइल जब्त करता हूं तुम्हारा। हर वक्त रोने रोती रहती हो कि जुल्म के पहाड़ टूट पड़े हैं तुम पर। वो फट पड़ा। ये सब आपकी वजह से हुआ है। शदीद सर्दियों में आप छुट्टी लेकर बैठ गए, वो भी जब्त खो बैठी। मुबरा, औरतें 100 काम एक साथ करती हैं। तुम अगर जरा से स्टॉप तक चली जाती हो या रिक्शा पकड़कर वापस आ जाती हो तो क्या मर जाती हो? वलीद, आपसे बढ़कर खुद गर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी है। वो बस रो पीट कर खामोश हो गई थी। 2 दिन बाद ही वलीद को हसीब खान का फोन आ गया। कल से जोहेब मुबरा को कॉलेज छोड़ भी देगा और ले भी आएगा। उन्होंने कहा, अंकल, कोई ज़रूरत नहीं है ख्वामख्वाह तकलीफ करने की। हमारा मसला है तो हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। वो सपाट अंदाज में इनकार कर गए। वलीद, वो मेरी बेटी है। शदीद सर्दी में वो तन्हा स्टॉप पर खड़ी होती है। सोचो मेरे दिल का क्या हाल होता होगा। वो गुस्से से बोले। नहीं कुछ होता आपकी बेटी को। वो तड़क कर कॉल काट गया था। अपनी बाप को अपनी जबान में मना कर लो, फिर मैंने सख्त जबान इस्तेमाल की तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो मुबरा पर बरस पड़ा। मुबरा ने आपदा को कॉल खड़का दी। अम्मी, आखिर आप लोग मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? मैं खुद ही कर लूंगी ना जो करना है। आप प्लीज अब्बू को मना कर दे, खबरदार जो जोहेब यहाँ आया तो। वो गुस्से में आपदा पर बरसती चली गई थी। उस दिन मरवान घर आया तो फरहत ने अपने कमरे में बुलवा लिया। वहां राबिया भी सर झुकाए आंसू बहाने में मसरूफ थी। अम्मी, क्या हुआ? जाकर अपनी बीवी से पूछो, राबिया तड़क कर बोली। क्या कहा रोहा ने? वो इकलौती बहन को रोता देखकर तड़प गया था। जोया भाभी अपने मैके से शॉपिंग करके आई थी। मैंने भी कह दिया कि मैं भी कुछ दिनों तक मुरवान के साथ शॉपिंग पर जाऊंगी। मेरे ससुराल में शादी आ रही है।
خدا کی قسم مروان، اس لڑکی نے میری اس قدر بےزتی کی کہ حد نہیں. منہ پھاڑ کر کہہ دیا کہ مروان نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، کبھی تمہیں شاپنگ کروائے، کبھی تمہاری فرمائشیں پوری کرے. رابعہ روتی جا رہی تھی. مروان، کہنے کو میں ابو سے بھی کہہ سکتی ہوں، لیکن تم چھوٹے بھائی ہو میرے، میرا کیا کوئی حق نہیں ہے تم پر؟ وہ بولی. مروان، اس کی زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگ گئی ہے. فرحت کو غصہ آیا تھا. امی، میرا گاڑی نکلوانے کا ارادہ ہے، بس اسی لیے روحا نے کہہ دیا ہوگا. وہ سر جھکاتے ہوئے بولا. گاڑی نکلوانا ایک طرف اور سب کو جوتے کی نوک پر رکھنا ایک طرف. مروان، اسے سمجھا لے، جب ہم لوگ اس کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے تو اسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے خواہ مخواہ بکواس کرنے کی. فرحت نے اس کی ساری باتیں سنی تھی. رابعہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل رو رہی تھی. اکلوتی بہن ہے تم لوگوں کی، اب بھائیوں سے بھی فرمائشیں نہ کرے تو کس سے کرے؟ میں لے چلوں گا تمہیں شاپنگ. وہ رابعہ کا سر تھپکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. اوپر آیا تو روحا کچن میں تھی. وہ چپ چاپ کمرے میں آ گیا. مروان، کھانا لگاؤں؟ وہ پسینہ صاف کرتے ہوئے کمرے میں آئی تھی. تم نے رابعہ سے کیا کہا ہے؟ مروان اس کی طرف مڑتے ہوئے بولا. بھر دیا آپ کو آتے ہی. وہ تنزیہ سی ہنسی تھی. روحا، ہر وقت فضول بکواس کرنا ضروری ہے کیا؟ مروان نے شاید پہلی بار اس سے اس لہجے میں بات کی تھی. اچھا، اب بکواس بھی کرنے لگی ہوں میں. روحا اس کے قریب آئی تھی. وہ میری اکلوتی بہن ہے روحا، اور اس کا پورا حق ہے مجھ پر. اور میرا حق؟ کب تمہارا حق ادا نہیں کیا؟ وہ بولا. ابھی اور اسی وقت آپ میرا حق ادا نہیں کر رہے مروان. آپ صرف اس کی سن رہے ہیں، میری نہیں. وہ بولی. تمہیں گاڑی چاہیے نا؟ میں لے دوں گا، لیکن آئندہ رابعہ کو کچھ نہیں کہنا. وہ اس سے انگلی اٹھاتے ہوئے وارن کر گیا تھا. روحا مارے صدمے کے آگے سے بول نہیں سکی تھی. ٹرانسفرز اوپن ہو گئے تھے. مبرا کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اس نے روحا کے ذریعے پتہ کروایا تھا. گرلز کالج میں تو اس کے لیے جگہ نہیں تھی، لیکن مروان نے کہا تھا کہ بوائز کالج میں سیٹ ہے. وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا ایچ او ڈی بھی تھا اور کمپیوٹر سائنس کا واحد لیکچرار بھی. اس کی تو دل سے دعا تھی کہ کوئی اس کے بوجھ کو بانٹنے والا بھی آئے. مبرا، یار مروان کہہ رہے تھے کہ مبرا سے کہو جلدی اپلائی کر دے، بوائز کالج میں سیٹ ہے. روحا نے اسے ساری انفارمیشن دے دی تھی اور اس نے اپلائی بھی کر لیا تھا. اسے لڑکوں کو پڑھانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. 2-3 سال اس نے ساتھ کے کوچنگ سینٹر میں لڑکے ہی تو سیدھے کیے تھے. اس کے پریگننسی کا 4تھا مہینہ شروع ہو گیا تھا. اس رات وہ ولید کے پہلو میں آ کر لیٹی تو بے تحاشا خوش تھی. ولید، میں نے ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر دیا ہے. اس کا کہنا ہی جیسے گناہ ہو گیا. کون سا ٹرانسفر؟ ٹرانسفر اوپن ہوئے ہیں نا، یہاں پر بوائز کالج میں ویکینسی بھی ہے. میں نے اپلائی کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا ولید؟ وہ ماری خوشی کہ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ ہی نہ سکی. تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے مبرا، اب مردوں کے ساتھ جاب کرو گی؟ وہ بولا. تو اب کون سا میں عورتوں کے ساتھ جاب کر رہی ہوں؟ روزانہ آتے جاتے نہ جانے کیسے کیسے مردوں سے واسطہ پڑتا ہے. مبرا، کوئی ضرورت نہیں ہے بوائز کالج میں ٹرانسفر کروانے کی. کیوں ولید؟ وہ رونے والی ہو گئی. مجھے نہیں اچھا لگتا تمہارا مردوں میں اٹھنا بیٹھنا. لڑکے فیمیل ٹیچرز کے بارے میں انتہائی بےہودہ قسم کی بکواس کرتے ہیں، سمجھی؟ وہ غصے سے بولا. ولید، میں نے 3 سال پڑھایا ہے لڑکوں کو، انہیں فیمیل ٹیچرز کی عزت کرنا بھی آتی ہے. سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے. اور اگر آپ کو زیادہ ہی مسئلہ ہے تو میں گاؤن پہن لیا کروں گی. وہ جلدی سے بولی. مبرا، نو ٹرانسفر بس. وہ زور سے بولا. ولید پلیز تھوڑا تو طرز کھائیں مجھ پر. بہت زیادہ تھک جاتی ہوں میں. روزانہ آنے جانے میں وقت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اوپر سے کنڈیشن ایسی ہے کہ دل ہی گھبرا جائے، اور پھر گھر آ کر ہزاروں کام. پلیز ولید. وہ منتوں پر اتر آئی تھی. مبرا، جب گرلز کالج میں سیٹ ہوگی تب کروا لینا. ولید مزید کئی سال لگ جائیں گے. وہ نحاسی ہو گئی. مبرا، یار میں ہوں نا تمہارے ساتھ. مبرا کا وہی پرانا گھسا پٹا پینترا. ولید. مبرا نو بحث. وہ اسے چپ کروا گیا تھا. کچھ دنوں بعد ٹرانسفرز بند ہو گئے. مبرا نے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا کہ اس نے ٹرانسفر کے لیے اپلائی کیا ہے. اب دا روز کال کر کے پوچھتی. روحا کی بھی 2 بار کال آئی تھی. ایک دن تو خود مروان نے اسے کال کی جو اسے جان بوجھ کر ریسیو نہیں گئی. چند دنوں بعد آرڈرز ہو گئے. اس کا ٹرانسفر اس کے اپنے ہی شہر میں ہو چکا تھا. 10 دن کے اندر اندر وہ جوائن کر سکتی تھی. ولید پلیز، میرے لیے بجائے آسانی ڈھونڈنے کے آپ اور مشکلات کیوں نکالتے ہیں؟ مجھے جوائن کر لینے دے. مجھ سے نہیں ہوتا اب اتنا سفر. وہ اس رات اس کی منتوں پر اتر آئی تھی.
आंटी प्लीज आप ही वलीद को समझाए ना, ऐसे तो ना करें। सास की अलग सी मिन्नत है। वलीद पुत्र, इसका ट्रांसफर ना होने दी, ये तेरे सर पे बैठ जाएगी, ऊपर से आए रोज मैके के चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे। शमीम सुबह शाम वलीद के कान भर रही थी। उस दिन उसकी बस हो गई। वो स्टॉप पर उतरी तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। वलीद मुझे ले जाए। उसने एक दुकान के शेड तले खड़े होकर वलीद को कॉल की। यार रिक्शा लेकर आ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नींद में डूबी हुई आवाज में उसने मुब्रा को हुक्म दिया था। मूसलाधार बारिश में कीचड़ में लथपथ वो बमुश्किल घर आई थी, और घर आई तो वलीद हीटर लगाए गर्म कपड़े कमरे में मदहोश पड़ा सो रहा था। मुझे लेने क्यों नहीं आए? वो उस पर चढ़ दौड़ी थी। आवाज धीमी रखो, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। वलीद, आज सही मुआयनों में अफसोस हुआ है मुझे मेरे चुनाव पर। सबने रोका था मुझे। काश काश मैं किसी एक की ही सुन लेती। वो ऊंची आवाज में रोते हुए बोली थी। सुबह ही ज्वाइन करूंगी मैं बॉयज कॉलेज। उसने अपना बैग घुमाकर सोफे पर फेंका। और भला वलीद को भला इस कदर बकवास सुनने की आदत थी? उसने मुब्रा को बालों से पकड़कर घसीटा था और बाहर सहन में ले आया था। शदीद सर्दी और बारिश के बायस सहन बर्फ की सिर हो रहा था। पेदर पे उसने इस चंद माह की हामला लड़की को धुनक कर रख दिया था। उसके लबों से निकलती गुलफेशानियों पर मुब्रा दम बखुद रह गई थी। तू जाकर दिखा मुझे बॉयज कॉलेज। वो उसे मार मार कर थक गया था। मुब्रा को आस पड़ोस की औरतों ने उसके चुंगल से छुड़वाया। एरम और अनम तो बस कमरे से बाहर ही नहीं निकली। शमीम बस ड्रामा ही किए जा रही थी। पूरी रात वो तकलीफ से अधमुई पड़ी रही। अगले दिन लास्ट डेट थी। उससे मुरवान की कॉल पर कॉल आ रही थी। वलीद जरा सा बाहर निकला तो उसने रिसीव कर ली। कैसी हैं आप मुब्रा? जी ठीक हूं, वो बमुश्किल बोली थी। अंग अंग सूजा पड़ा था। चेहरे पर जा बजा नील, होंठ फट गया था। आप आएंगी? आप आई नहीं ज्वाइनिंग देने? वो पूछ रहा था। सर आई एम सॉरी, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर रही, वो अपने आंसू दबाते हुए बोली थी। ओके। वो बस खामोशी से कॉल काट गया था। वलीद ने उसे नहीं जाने दिया। दिन पर दिन गुजर गए और उसके ऑर्डर्स एक्सपायर हो गए थे। वो अपनों और साथ का चाय का कप लेकर कमरे में आई थी। उनकी शादी को 4 माह होने आए थे। इफ्रा भी एक्सपेक्टेड थी। साथ का कप उसे पकड़ाते हुए वो बैठ के दूसरी जानिब आ गई। वो कोई हिसाब किताब खोले बैठा था। क्या समझ में नहीं आ रहा? इफ्रा ने उसके कंधे पर सर रखते हुए पूछा। ये समझ में नहीं आ रहा कि एकेडमी का खर्च आमदन से ज्यादा क्यों होता जा रहा है। मेरा तो दिल करता है बंद कर दूं। वो थके से लहजे में बोला। क्यों, स्टूडेंट्स नहीं आते क्या? बस मैथ्स और इकोनॉमिक्स पढ़ने आते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए मुरवान के पास चले जाते हैं और फिर वापस ही नहीं आते। वो बोला। आप कंप्यूटर साइंस के लिए भी कोई रख लें। अरे सच याद आया, मुब्रा ने आज ज्वाइनिंग देनी थी। इफ्रा की बात सुनते ही उसने अपना सैल उठाया था और उसके लबों से निकलता मुब्रा सुनकर इफ्रा चौंक सी गई। ये नाम उसने अक्सर और बेशतर उस घर के अफराद के मुंह से सुना था। वो शायद रोहा की दोस्त थी। कोकब भी अक्सर उसका जिक्र करती थी। लेकिन जब जब उसने साथ के लबों से ये नाम सुना था तब तब उसे अच्छा नहीं लगा था। वो दिन में हजारों लड़कियों का नाम लेता था, स्टूडेंट्स का, कजन्स का, कोलीग्स का। इफ्रा ने कभी महसूस नहीं किया, लेकिन जब वो मुब्रा का नाम लेता तो उसे अजीब सा महसूस होता था। वो बड़ी अपनायत से उसका नाम लेता था, बड़ी इज्जत से, बड़े एहतराम से, यूं जैसे वो बहुत अहम हस्ती हो। अब भी उसने जिस अंदाज से मुब्रा कहा, इफ्रा बस साकत सी बैठी रह गई। उसने खुबाब को कॉल की थी। सलाम दुआ के बाद उसने मुद्दे की बात की। खुबाब, मुब्रा ने ज्वाइन कर लिया? उसने पूछा। ओ यार, हमें तो खुद नहीं पता, मैं अभी घर से बाहर निकला हुआ हूँ, वो बोला। साद ने एक दो बातें करके कॉल काट दी। मुरवान से पूछता हूँ। उसने मुरवान को कॉल की थी। हाँ साद। मुरवान, मुब्रा हसीब खान ने ज्वाइन कर लिया है? उसने पूछा। नहीं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। मुरवान के कहते पे वो हैरान रह गए। क्यों, अपने शहर नहीं आ रही? फिलहाल तो नहीं, मैं तो खुद इसी उम्मीद पर था कि चलो बीएस स्टार्ट होने से पहले वो ज्वाइन कर लेंगी, मुरवान ने कहा। चलो ठीक है। उसने बुझे दिल के साथ कॉल काट दी। हद है यार, मैंने सोचा था कि वो कॉलेज ज्वाइन करेगी तो साथ में उसे एकेडमी के लिए भी फोर्स करूंगा, लेकिन साद ने कंधे उचकाते हुए कहा। अलबत्ता इफ्रा जरा सी मुतमईन नजर आई थी।
उसने चाय का कप साइड टेबल पर रखा और उसके सामने बिखरा सारा हिसाब किताब बंद कर दिया। चलें बस करें अब ये मातम, मुझसे ले लेना जितना फर्क आ रहा है, वो उसके गले में बाजू डालते हुए बोली थी। बस जितना फर्क आया है उतना ही? साद ने उसके गिर्द हिसार तंग करते हुए मायने खेज से अंदाज में पूछा। इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है फिलहाल। इफ्रा ने उसके चेहरे से अपना चेहरा टिकाया था। साद ने मुस्कुराते हुए उस पर दस्तरस हासिल की थी। वो सभी नुफूस रात का खाना खा रहे थे। जुहेब का LLB में एडमिशन हो गया था, सो वो भी अभी एक हफ्ते पहले ही मुल्तान चला गया था। और किसी को रोटी चाहिए? हिना रोटियां बना रही थी। नहीं बस आजा खाना खा, अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं बना दूंगी, आबदा ने कहा। हिना चूल्हा बंद करते हुए अपनी कुर्सी पर आ बैठी। उसामा का स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। उससे छोटी इरहाबी अभी 1 साल की थी। पता नहीं मुबरा ने ज्वाइनिंग दे दी या नहीं, आबदा को याद आया। अरे हाँ, पूछे तो सही, प्रोफेसर साहिबा अपने होम टाउन तशरीफ ले आई या नहीं? शुएब ने हंसते हुए कहा था। हसीब खान ने पानी का गिलास खत्म करते हुए उससे कॉल मिलाई थी, जो हस्बे आदत उसने नहीं उठाई। फिर खुबाब करता रहा बेसुध। किचन में घुसी होगी, आबदा ने कहा। अब्बू कंफर्म ही करना है ना, मुरवान को कॉल कर ले, शुएब ने कहा तो हसीब खान ने सर हिलाते हुए मुरवान को कॉल की। कैसे हैं अंकल? उसने दूसरी बेल पर ही कॉल उठा ली। शुक्र है मालिक का। चंद रस्मी सी बातों के बाद वो मुद्दे पर आ गए। मुरवान, हमारी प्रोफेसर साहिबा ने ज्वाइन कर लिया? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं अंकल। क्यों? उनकी मुस्कुराहट मांद पड़ी थी। आप दबी ठिठक गई। ये तो मुझे नहीं पता अंकल, लेकिन मैंने कल कॉल की थी उन्हें। कल लास्ट डेट थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ज्वाइन नहीं कर रही। अब तो ऑर्डर्स भी एक्सपायर हो गए हैं। मुरवान बताता चला गया। हसीब खान ने मुर्दा दिल से कॉल काट दी। क्या हुआ अब्बू? उसने ज्वाइन ही नहीं किया, उन्होंने बम फोड़ा था। क्या मतलब? क्यों ज्वाइन नहीं किया? शुएब बेयकीन सा था। पता नहीं, बस नहीं किया। उनका दिल अतः गहराइयों में डूबता जा रहा था। जरूर उसने मना कर दिया होगा, वो चाहता ही नहीं है कि मुबरा यहाँ आए। आबदा तड़क गई। शुएब ने उसी वक्त वलीद को कॉल की थी। शुएब बेटे तहम्मुल से। हसीब खान ने उसे टोका, लेकिन वो भी वलीद अहमद था। उसने कॉल रिसीव करके फोन मुबरा को पकड़ा दिया। मुबरा, बच्चे मेरी बात सुन, मैंने कल लाहौर जाना है, मैं खुद तेरे ऑर्डर्स रिवाइज करवा देता हूँ, वो बोला। शुएब भाई प्लीज, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, आप कुछ मत करें, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। शुएब ने वाजे उसके लहजे की नमी महसूस की थी। बिजली का बिल 30,000 आया था। वो दोनों रात का खाना खा रहे थे जब राबिया उसे बिल पकड़ाने आई। अम्मी कह रही हैं सुबह जमा करवा देना याद से, वो बोली। 30,000? इतना बिल? मुरवान की आंखें फैल गई। ये सारा मुरवान ने देना है? रोहा उससे ज्यादा हैरान थी। तो और किसने देना है? राबिया मुंह बनाकर बोली। इस घर में से मुरवान ही तो नहीं रहते, तुम्हारे बड़े 2 भाइयों की फैमिलीज भी रहती हैं, रोहा ने कहा। रोहा जाने दो, मुरवान ने कहा। क्यों जाने दूं? ये क्या तरीका है भला? बिल उठाकर ऊपर भेज दिया जैसे मुरवान मिर्जा का जाती बैंक हो। ये बिल वापस लेकर जाओ और अपनी दोनों भाभियों से कहो कि बिल में हिस्सा डालें। रोहा ने बिल राबिया को वापस किया था। रोहा, मैं करवा दूंगा ना। मुरवान को झगड़े का अलार्म बजना महसूस हुआ था। नहीं, ये बिल आप तीनों भाई मेल कर देंगे। मुरवान, आपने सबका ठेका लिख रखा है क्या? रोहा को गुस्सा आ गया। राबिया चुपचाप बिल लेकर नीचे चली गई थी। अब देखना, अब्बू मुझे बुला लेंगे। मुरवान डर रहा था। मैं खुद बात कर लूंगी उनसे, रोहा ने कहा। और मुरवान के अंदाजे के आयन मुताबिक कुछ ही देर बाद उसे काशिफ मिर्जा का बुलावा आ गया। रोहा उसके साथ ही नीचे आई थी। बिल वापस क्यों किया? उन्होंने पूछा। अब्बू, पिछले महीने भी सारा मैंने ही दिया था, वो मिनमिनाया। मुरवान, एक बिजली का बिल ही तो बस तुम्हारे जिम्मे है, बाकी तो दोनों अपना खर्चा खुद उठाते हैं। रोहा ने उनकी बात काट दी। अंकल प्लीज जरा बताएं कि कौन सा खर्चा, वो बोले। फरहान और नौमान हर महीने का राशन, सब्जी, दाल, सर्फ, बच्चों की फीसें, ये सब करके जाते हैं। काशिफ मिर्जा के कहते ही रोहा की हंसी निकल गई। आप जरा जोया और निमरा को बुलाएं और उनसे पूछें कि उन्हें पिछले कई महीनों से राशन कौन डलवा कर दे रहा है, वो जोर से बोली। काशिफ मिर्जा ने बेयकीनी से मुरवान की तरफ देखा। अब्बू, बस एक आध बार ही फरहान भाई डलवा कर गए थे, उसके बाद से तो मैं ही डलवा रहा हूँ।
निम्रा भाभी को भी सौदा मैं ही ला कर देता हूँ। 2-3 महीनों से सब्जी और दूध का बिल भी मैंने ही दिया है, बल्कि वो कहते कहते रुका। इस महीने की बच्चों की फीसें और रिक्शे का खर्चा भी मुरवान ने ही दिया है, रोहा ने कहा। काशिफ मिर्जा को यकीन नहीं आया। उसी वक्त जोया को बुलाया। फरहान राशन वगैरह क्यों नहीं डलवा कर जाता? उन्हें गुस्सा आया था। अंकल, उन्होंने मुरवान को कहा था। मुरवान ने ठेका ले रखा है उसका? वो बोले। सारा खर्चा ये उठा रहा है तुम लोगों का, तो वो क्या कर रहा है 4-5 महीनों से? उनकी समझ से बाल अतर था। अंकल, मुझे क्या पता, मैं तो जोया से बोला ना गया। इससे पहले कि काशिफ मिर्जा फरहान को कॉल मिलाते, निम्रा बोल पड़ी। अंकल, फरहान भाई और नौमान ने एक प्लॉट लिया है इस्लामाबाद में, उसकी किस्तें देनी होती हैं। उसके कहते ही रोहा के सर पे लगी और तलवों पे जा नहीं बुझी। वाह भाई वाह, मैं भी कहूं कि फौज में भर्ती होकर भी अपनी फैमिलीज को यहाँ क्यों छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ मुरवान जो है, उनके बीवी बच्चों को पालने के लिए, उनको अयाशियां करवाने के लिए। हद है वैसे बेशर्मी की। बिजली के बिल से लेकर राशन तक मुरवान करे, स्कूल की फीसें मुरवान भरे, सारे लवाजमात मुरवान पूरे करे, दवा दारू मुरवान करे, और खुद प्लॉट खरीदे जा रहे हैं। वो हत्ते से उखड़ गई थी। रोहा, आहिस्ता बोलो। फरहत को उसका यूं बोलना अच्छा नहीं लगा। मैं तो और ऊंचा बोलूंगी। नौकर ही बना दिया है मुरवान को तो सबने। पिछले 6 माह से मैंने न जाने अपनी कितनी जरूरतें महदूद की हैं कि गाड़ी लेनी है, और बड़े भाइयों ने सारा मलबा मुरवान पर धर रखा है। वो बोली। रोहा, बस करो, मुरवान ने उसे टोका। मुरवान, कसूर सारा आपका है, और मुंह में कंघियां डाल के बैठे। हर बात पर जी, हर बात पर जी, हद हो गई। वो चीख कर बोली। सुनो, इतना गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। मुरवान बेटा है इस घर का, अगर खर्चे उठा भी लिए तो क्या हो गया? राबिया ने कहा। क्यों? मुरवान ने पैदा किया है तुम सबको जो तुम सबके खर्चे उठाए? रोहा तो नक कर बोली। रोहा, मुरवान जोर से बोलते हुए उसकी तरफ मुड़ा और उसे बाजू से जकड़ा। जाओ ऊपर। वो शायद पहली बार उस पर इतना ऊंचा चिल्लाया था। मुरवान? रोहा बेयकीन सी थी। मैंने कहा ऊपर जाओ, वो बोला। रोहा उसे कहरबार नजरों से घूरते हुए ऊपर चली गई। जुहेब एक प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू देने गया था। वहां उसने वलीद को देखा। वो न जाने किस काम से आया था, लेकिन जुहेब को देखकर इधर उधर हो गए। जुहेब ने घर आते ही हसीब खान को बताया। शुएब भी वीकेंड पर घर आया हुआ था। अब्बू, मुझे पक्का यकीन है कि वो वहां इंटरव्यू देने ही आया था, जुहेब ने कहा। लेकिन उसकी तो सरकारी नौकरी है। हसीब खान कश्मकश में पड़ गए। अब्बू, वो पिछले कई दिनों से जॉब पर नहीं जा रहा। मुबरा अकेली ही जाती है। बड़ी मुश्किलों से उसने सरसरीसा हिना भाभी को बताया था कि वलीद ने छुट्टी ली हुई है, जुहेब ने कहा। अब्बू, ये पता लगाना कौन सा मुश्किल है। खुबाब, साथ को कॉल कर जरा, अभी पता चल जाएगा, शुएब ने कहा। खुबाब ने फिल वक्त उसके सेंटर को ज्वाइन किया हुआ था। उसने उसी वक्त साद को कॉल मिला ली। सलाम दुआ के बाद वो मुद्दे पर आया। साद, एक बात पूछनी थी यार। हाँ बोलो। वलीद ने कोई छुट्टी वगैरह अप्लाई की हुई है क्या? उसने पूछा। उसने तो मुस्तकिल छुट्टी अप्लाई कर दी है, साद ने कहा। क्या मतलब? आप लोगों को नहीं पता? क्या नहीं पता? खुबाब ठिठक गया। उसे तो नौकरी छोड़े 1 महीना हो गया है। साद ने उसकी समातों पर बम फोड़ा था। खुबाब दम बखुद रह गया। मुबरा ने बताया नहीं? साद उसकी खामोशी का मतलब समझ गया था। नहीं, उससे काफी अरसे से बात नहीं हुई। वो धीरे से बोला। फिलहाल कुछ नहीं कर रहा वो, बस इधर उधर 1-2 इंटरव्यूज दिए हैं, साद ने कहा। थैंक यू साद, खुबाब ने जबरी से मुस्कुराकर कहते हुए बात काट दी। क्या हुआ? सबका मुश्तरका सवाल था। खुबाब ने मनो अंसारी बात दोहरा दी। मुझसे लिखवा ले, मुबरा को भी नहीं पता होगा। शुएब के गुस्से का कोई हाल नहीं था। कॉल कर उसे, आबदा ने कहा। रहने दें कॉल करने को, वो कौन सा सच बोलेगी, हम खुद हो आते हैं। शुएब खड़ा हो गया। शुएब, तू रहने दे, हसीब खान ने कहा। अब्बू, मैं जरूर जाऊंगा, वो बोला। मैंने कहा ना तू रहने दे। खुबाब, गाड़ी निकाल, वो उठते हुए बोले थे। अभी पिछले दिनों ही शुएब ने गाड़ी निकलवाई थी। खुबाब ने फौरन गाड़ी निकाली और हसीब और आबदा को लेकर 10 मिनट में मुबरा के ससुराल पहुंच गया। रात का वक्त था। वो हस्बे मामूल किचन में खड़ी थी। ये किचन तो मुझे लगता है मुंह दिखाई में मिला है तुझे। आबदा उसे देखकर क्लस गई। अम्मी, मैं बस चाय बना रही थी। वलीद कहाँ है? अंदर है। सब खैर है अम्मी? उसका दिल हौलने लगा था। आबदा और हसीब खान उसके कमरे की तरफ आ गए।
वलीद किसी से कॉल पर मसरूफ था। वो तीनों इधर उधर जगह बनाकर बैठ गए। अब्बू मैं चाय लेकर, मुबरा यहाँ बैठ जाओ, आबदा ने दुरुस्तगी से कहा था। शमीम और वलीद का बाप भी वहीं आ गए। ये इस अचानक छापे का मकसद? वो उठकर मिला भी नहीं था। कितना अरसा हो गया है नौकरी छोड़े? हसीब खान ने डायरेक्ट निशाना मारा था। एक लम्हे को तो वलीद गड़बड़ा गया। मुबरा ने हैरत से फटती हुई नजरों से उसे देखा था। क्या मतलब? मतलब साफ है, जाहिर है दामाद जी, नौकरी क्यों छोड़ दी? उन्होंने फिर पूछा। मेरी नौकरी मेरी मर्जी, वो ढिठाई से बोला। तो जब खुद नौकरी छोड़कर सफर की मुसीबत से जान छुड़वा ली थी तो इस बेचारी का ट्रांसफर क्यों नहीं करवाने दिया? आबदा एकदम तेजी से बोली। मुबरा ने बेयकीन नजरों से वलीद की तरफ देखा। वलीद, आप तो कह रहे थे कि बस 15 दिन की छुट्टी है, वो सदमे से फटती हुई आवाज में बोली। अंकल, मैं जॉब रखूं या छोड़ दूं, यह सरासर मेरा जाती मसला है, आप लोगों को इसमें दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है, वो रुखाई से बोला। क्यों नहीं है? 1 महीने से तुम घर पर बैठे हो, छोटे दोनों भी कोई खास नहीं कमाते, 10-11 अफराद खाने वाले हो, किसके सर पर चल रहा है खर्चा? मुबरा के सर पर ना, आबदा ने कहा। मुबरा के आने से पहले भी हम सवेरे शाम रोटी खाते थे मेरी बहन। शमीम को अच्छा नहीं लगा। बहन, मुझे पहले का तो कुछ नहीं पता, लेकिन अब आपका पूरा टब्बर मुबरा के सर पर ही चल रहा है और ये जालिम इंसान उसे जानबूझकर यहाँ ट्रांसफर नहीं करवाने देता। जब मैं आऊं मेरी बच्ची किचन में घुसी होती है, जब कॉल कर लो मुबरा मसरूफ होती है। महीनों गुजर जाते हैं, हम इसकी शक्ल देखे, इसकी आवाज सुने, घनचक्कर बना दिया है आप लोगों ने मेरी बेटी को। आबदा का सारा जब्त जवाब दे दिया था। इतनी ही जुल्म की चक्की में पिस रही है ना आपकी बेटी, तो ले जाए उसे, जाए, जाओ अपनी माँ के साथ दफा हो जाओ। वलीद एकदम तन फन करता बिस्तर से उतरा और मुबरा को बाजू से झटका देकर आबदा की तरफ धकेला था। खुबाब को कहर चढ़ गया। तीर की तरह उठकर वो वलीद की तरफ आया। खबरदार, जो मेरे सामने मेरी बहन के बारे में एक भी और लफ्ज बकवास किया तो। बस वलीद का गिरेबान पकड़ने की ही कसर रह गई थी। खुबाब, पीछे हो जाओ, पीछे हटो। हसीब खान बीच में आए थे। मुबरा, बेटा तेरा हक महर कितना था? उन्होंने पूछा। 50,000। 5,000 दिया था मेरे सामने, बाकी का अदा कर दिया था इसने। वो नहीं अबू, वो मैंने माफ कर दिया था इन्हें, मुबरा ने अटकते हुए कहा। और तुम्हारा जेवर कहाँ है जो उन्होंने बड़ा प्रचार करके डाला था, 7 तोले? अब्बू, वो वापस ले लिया था 2 दिन बाद। मुबरा उनसे नजरें ना मिला सकी। और मैके वाला? आबदा ने गुस्से से पूछा। अम्मी, वलीद को पैसों की जरूरत थी तो वो जेवर लीज पर रखवा दिया था, वो धीरे से बोली। वलीद बस ताव खाए जा रहा था। शादी के वक्त तेरे बैंक में 5 लाख रुपए जमा थे, वो कहाँ गए? अगला सवाल। अब्बू प्लीज, मुबरा ने इल्तिजाइया सी नजरों से उन्हें देखा। इस वक्त कितने पैसे हैं तेरे पास? हसीब खान ने उसकी सुनी अनसुनी करते हुए पूछा। मुबरा की आंखें भर आई और आबदा की बस हो गई। यकदम ही उन्होंने मुबरा का हाथ थामा था। चल उठ खड़ी हो, चल हमारे साथ, बस बहुत हो गया। वो उसे लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। बहन, बात तो सुने, आखिर बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? इसने अगर शौहर की जरूरत के पेशे नजर अपने पैसों से दे भी दिए तो क्या हो गया? बीवियां तो पता नहीं क्या कुछ कर जाती हैं शौहरों के लिए। शमीम जल्दी से उठकर उनके सामने आई। शौहर भी बड़ा कुछ करते हैं बीवियों के लिए, वो भी पता है तुम्हें बहन के नहीं? उनके गुस्से का कोई हाल नहीं था। शादी के महज 6 माह बाद ही इस खबीस ने मेरी बच्ची को फकीर बना दिया। बहन, हमने अपने घर में कोई जानवर भी पाला होता ना तो उसकी भी जरूरियात का ख्याल रखा जाता है, उसके खाने पीने का, उसकी सेहत का। और आप लोगों ने मेरी बच्ची के साथ क्या किया? शक्ल देखें इसकी, सेहत देखें इसकी। आबदा उस पर बरस ही पड़ी। बहन मेरी, कुछ नहीं हुआ तेरी बच्ची को, सारा घर ख्याल रखता है इसका। शमीम ने उसे ठंडा करना चाहा। बहन, मुझे बस ये बता दें कि जब इसने खुद नौकरी छोड़ दी थी तो फिर मेरी बच्ची को ट्रांसफर क्यों नहीं करवाने दिया? सुबह शाम इस हालत में वो सफर करते हुए ख्वार होती है। इस बेगैरत से इतना नहीं होता कि उसे सुबह उठकर स्टॉप पर ही छोड़े और वापसी पर घर ले आए। आबदा ने कहा। बहन, हम मानते हैं हमारी गलती है। वलीद ने बस इसलिए आप सबको नौकरी छोड़ने का नहीं बताया कि आप लोग खामख्वाह परेशान होंगे। ये जल्द ही कोई और नौकरी ढूंढ लेगा। 2-3 जगह पर इंटरव्यूज दिए हैं इसने। शमीम की आंखें दिखाने पर वलीद के बाप ने खंखार कर कहा, जबकि मुबरा तो बस बेयकीन सी नजरों से वलीद को ही देखे जा रही थी।
कोई 2-2.5 घंटे तक बहस होती रही। वलीद 1% भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। खुबाब और हसीब खान के सामने हनूज अपनी गर्दन में सरिया डाले बैठा रहा। मुबरा, बच्चे उठ चल हमारे साथ, खुबाब ने थक हार कर खड़े होते हुए कहा। खुबाब भाई प्लीज, आप परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब जब दोबारा ट्रांसफर खोलेंगे तो करवा लूंगी ट्रांसफर। मुबरा ने सूरत हाल को जरा रिलैक्स करना चाहा था। अम्मी प्लीज, मैं ठीक हूँ, अल्लाह वलीद की नौकरी का कोई और सबब बना देगा, आप परेशान ना हो। वो आंखों ही आंखों में माँ को तसलियां दे रही थी। ये सब कुछ तेरी शय पे हुआ है मुबरा। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि तुझे आखिर एहसास कमतरी किस चीज का है। क्यों तूने इन अजड़ और गंवार लोगों को अपने सर पर चढ़ा लिया है? अभी भी वक्त है, उतार कर फेंक दे इन्हें अपने सर से, वरना तुझे जिंदा दरगोर कर देंगे। आबदा का दिल उसे देख देख के फट रहा था। अम्मी चले आए, जब इसने खुद ही कुएं में छलांग लगाने का फैसला कर लिया है तो भला अब इसे कौन रोक सकता है? खुबाब आबदा का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। हसीब खान ने तासुब से मुबरा की तरफ देखा। मैंने हमेशा यही कहा है कि मेरी बेटी परफेक्ट है। मेरा खुदा गवाह है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी में कोई कमी है। ये सबक तो मैंने तुझे कभी पढ़ाया ही नहीं मुबरा, लेकिन तूने ना जाने कहाँ से ये सबक सीख लिया है। वो इंतहाई दुख से कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। और उनके बाद मुबरा के साथ जो कुछ हुआ वो एक अलग ही दास्तान थी। मुरवान ने गाड़ी ले ली थी। रात 8 बजे का वक्त था जब वो गाड़ी लेकर घर में दाखिल हुआ। फिलहाल सेकंड हैंड ही ली थी। जोया और निम्रा के बच्चों ने उसके गिर्द जमघट्टा डाल दिया। राबिया और फरहत भी बाहर निकल आई थी। रोहा ने अपने कमरे की खिड़की से उसे देखा, लेकिन नीचे न उतरी। वो मुरवान से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। बच्चों ने सैर करने की रट डाल दी थी। वो उन्हें टालता हुआ कुछ देर बाद ऊपर चला आया। रोहा धुले हुए कपड़े की तह लगा रही थी। इतने दिनों से गाड़ी गाड़ी कर रही थी, अब देखी भी नहीं। मुरवान मोबाइल और चाबियां मेज पर रखता हुआ उसकी तरफ आया। रोहा चुपचाप कपड़े तह लगाती रही। रोहा, मेरी जान, अब नाराज ही रहना है। मुरवान ने बहुत मोहब्बत से उसके गिर्द हिसार बनाया था, फिर अपना चेहरा उसके कंधे पर रख दिया। रोहा का 7वां महीना खत्म होने वाला था। रोहा, आई एम सॉरी यार। मुरवान, मैं आपकी खातिर बोली थी, सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर। रोहा की आवाज़ भर आई। अच्छा, मैं सॉरी कर रहा हूँ ना, प्लीज़ माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें तो कभी कोई कमी नहीं होने दी ना। वो उसे पूरी तरह अपने हिसार में ले चुका था। मुझे दुख होता है मुरवान, जब ये सब जोंक बनकर आपका खून निचोड़ते हैं, वो बोली। मुरवान ने एक हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। आई एम सॉरी। बहुत नरमी से उसने रोहा को अपनी दस्तरस में लिया था। चलो कहीं घूम कर आते हैं, मैं अपनी जान को डिनर करवा कर लाता हूँ। वो बहुत मोहब्बत से उसका चेहरा चूमते हुए बोला था। सिर्फ मैं और आप, और कोई नहीं। रोहा ने शिकवा किना नजरों से उसे देखा। हाँ, बस मैं और तुम। वापसी पर अंकल और आंटी से मिलकर आएंगे। मुरवान ने उसका हाथ थाम कर कहा। वो उसके साथ सहज सहज कर चलती नीचे उतर आई। चाचू, हमने भी जाना है। जोया के तीनों बच्चे भागते हुए आए। चाचू, मैं भी। ऊपर से निम्रा वाला भी दौड़ा आया। ओए, कोई बच्चा नहीं जाएगा, तुम लोगों को कल सैर करवाऊंगा। मुरवान ने गाड़ी अनलॉक करते हुए कहा। चाचू, मुझे नहीं पता, मामा। उन दोनों ने एकदम गला फाड़कर रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ? जोया भाग कर बाहर निकली थी। भाभी, इन्हें कल ले जाऊंगा, वो बोला। रोहा चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। जोया के बेटी की देखा देखी निम्रा के बेटे ने भी अच्छा ही गला फाड़ा था। मुरवान, बस इसे ले जाओ, जोया ने कहा। भाभी, फिर अफान भी जिद करेगा। वो मजबूर हुआ खड़ा था। मुरवान, मैं भी चलूं? राबिया अंदर से भागी आई। यहाँ तो बच्चे ले जाना दोभर हो रहा है इसे, और तुम भी आ जाओ। जोया कलस गई। मुरवान, मैं, अफान और हसन चलते हैं बस। राबिया फुल टाइम तैयार थी। मुरवान, इन्हें घुमा लाएं, मैं नहीं जा रही। रोहा बोझल के दिल के साथ कहते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। रोहा, सुनो तो। मुरवान बस उसे पुकारता ही रह गया। मुरवान, चलो भी, हर वक्त इसके नाज न उठाए जाया करो। चलो हसन, अफान, आ जाओ। राबिया भाग कर गाड़ी में घुस गई। मुरवान बस उसे घूरता हुआ गाड़ी निकालने गया। रोहा कंबल तान कर घुट घुट कर रो दी थी। उस दिन सुबह से ही उसकी तबीयत मुजमहिल सी थी। वक्फे वक्फे से दर्द उठ रहा था। उसका 4था महीना शुरू हो गया था और वो सिर्फ एक बार चेकअप के लिए जा सकी थी।
لیڈی ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کی پریگننسی بہت کمزور ہے، سو اسے انتہائی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، لیکن صبح شام سفر کرتے ہی اس کی ساری احتیاط ختم شد ہو جاتی تھی۔ ولید پلیز مجھے چھوڑیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج۔ اس نے بڑی مان سے ولید کا کندھا ہلایا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نیند سے چور تھا۔ درد ہوئے جا رہا ہے۔ مبرہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ تو چھٹی کر لو۔ 3 تو کر لی ہیں اس مہینے، وہ بے چارگی سے بولی۔ مبرہ یار، میں کہاں وہاں ذلیل ہوتا پھروں گا تمہارے ساتھ، تھوڑی ہمت کر کے چلی جاؤ۔ وہ خود غرضی سے بولا تھا۔ آپ نے کون سا کچھ کرنا ہے گھر رہ کر؟ مبرہ کا کہنا ہی گناہ ہو گیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ولید نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں شوق سے گھر بیٹھا ہوں، تلاش کر تو رہا ہوں نوکری، جب ملنی ہوگی تو مل جائے گی۔ وہ اس پر برس ہی پڑا تھا۔ مبرہ چپ چاپ تیار ہونے لگی۔ چھوڑ آئیں گے؟ جاتے جاتے اس نے پھر بڑی امید سے پوچھا تھا۔ یار چلی جاؤ، جاؤ، نہیں مرتی تم۔ وہ اوپر تک کمبل تان گیا۔ وہ تعصب سے اسے دیکھتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ اسٹاپ تک وہ رکشے پر آئی، پھر بس پکڑی، آگے بھی رکشہ ہی لیا۔ جھٹکے کھا کھا کر اس کی بس ہوتی جا رہی تھی۔ کالج میں بھی سارا دن وہ اپسٹ ہی رہی، رہ رہ کر درد اٹھ رہا تھا۔ واپسی پر بارش شروع ہو گئی۔ اسے اسٹاپ تک جانا 2 بھر ہو گیا۔ رکشہ پانی بھری سڑک چھوڑ کر گلیوں میں سے ہو گیا تھا۔ اپنے اسٹاپ پر آ کر پھر سے رکشہ لینے کی اس کی ہمت نہ ہوئی۔ ولید کو اس نے خود ہی کال نہ کی۔ بار بار اس کا انکار سن کر وہ تھک بھی گئی تھی۔ کسی کو بھی نہ کہا، بس اللہ کا نام لے کر پیدل ہی چل پڑی۔ درد بڑھتا جا رہا تھا۔ کئی جگہ وہ پھسل کر گری۔ گاؤں کی کچی گلیوں میں حد درجہ پھسلن ہو رہی تھی۔ گھر پہنچی تو وہ سب پکوڑوں کی پارٹی اڑا رہے تھے۔ الماس نے سلنڈر باہر نکال کر اس پر کڑاہی رکھی ہوئی تھی اور سب اس کے ارد گرد کرسیاں ڈال کر بیٹھے تھے۔ ولید سمیت چھوٹے دونوں بھی گھر ہی تھے۔ وہ بس ایک نظر ان سب کو دیکھتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کسی کو سلام کرنے کا بھی دل نہ ہوا۔ دیکھا ولید، اس کا بس چلے تو پیر کی جوتی بنا لے ہمیں۔ شمیم نے تاک کر نشانہ مارا تھا۔ مبرہ کمرے میں آتے ہی جوتوں سمیت بستر پر گر گئی۔ کپڑے بدلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ اب کیا پہاڑ ٹوٹ پڑا تم پر؟ ولید اندر آتے ہوئے بولا۔ وہ خاموش پڑی رہی۔ تھوڑی تمیز سیکھ لو اور دماغ سیٹ کر لو اپنا۔ سلام کرنے کا رواج نہیں تھا تمہارے باپ کے گھر۔ وہ انتہائی درست لہجے میں بولا تھا۔ ہنوز خاموشی۔ تم سے بات کر رہا ہوں۔ ولید نے ایک دم اپنی طرف موڑا اور ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ آنکھیں بند تھیں، چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ، سانس بمشکل آ رہی تھی، سارا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے ذرا سا ترس آیا تھا۔ مبرہ کا سر اس نے اپنی گود میں رکھتے ہوئے اس کا چہرہ خشک کیا۔ ولید، خدا کے لیے مجھ پر ترس کھائیں، کچھ تو خیال کرے میرا۔ میں کون سا جانور ہوں؟ آپ کی بیوی ہوں ولید۔ میرے وجود میں سانس لیتا ہوا وجود آپ کا بچہ ہے۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ ولید نے اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے اس کا سر اپنے بازو پر رکھ لیا۔ مجھے سب نے روکا تھا، لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ مجھے سب نے کہا کہ ولید سے شادی مت کرو، لیکن میں پھر بھی آپ کو چنا، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنی پچھلی تمام غلطیوں پر شرمندہ ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ ہر انسان ایک اور موقع ڈیزرو کرتا ہے، اور میں نے آپ کو ایک اور موقع دیا۔ ولید، میں نے آپ پر اعتبار کیا، میں نے سب کے خلاف ہو کر آپ کو چنا۔ ولید احمد، میں نے محبت کی ہے آپ سے، خدا را میری محبت کو یوں رسوا نہ کریں، اسے میری غلطی نہ بنائیں پلیز۔ وہ بکھرتی جا رہی تھی۔ ولید نے مضبوطی سے اس کے گرد حلقہ تنگ کر لیا۔ اچھا، آئی ایم سوری، آئندہ کچھ نہیں کہوں گا، سوری۔ جنوری کا اختتام ہو رہا تھا۔ باہر پھر سے بارش شروع ہو گئی تھی۔ گرم کمرے میں ہر طرف خنکی کا راج تھا، اور ایسے میں اگر کوئی وجود گرم تھا تو وہ مبرہ حسیب خان تھی۔ اسے شاید بخار ہو رہا تھا۔ تکلیف برداشت کرتے کرتے وہ مزید تپ گئی تھی۔ اوپر سے وہ 3 کلومیٹر پیدل چل کر آئی تھی۔ جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا، اور اس لمحے ولید احمد کو اس کا وہ تپتا ہوا وجود کسی نعمت سے کم نہیں لگا۔ میں پیدل آئی ہوں ولید، بارش میں، کیچڑ میں، گرتی پڑتی۔ کیا کوئی حق نہیں ہے میرا آپ پر؟ کیا کوئی احساس نہیں ہے میرا آپ کو؟ سب کچھ تو کرتی ہوں میں، جو آپ کہتے ہیں سب کرتی ہوں۔ کوئی لمحہ سکون کا نہیں ہے میری زندگی میں۔ اور آپ ولید، آپ کے پاس کیا ہے میرے لیے؟ بس گالیاں، تانے، نشتر،
जली कटी बातें और थप्पड़, मुक्के, ठुड्डे। वो सारा जब्त खो बैठी थी। उसका तपता हुआ वजूद बाकायदा कांपने लगा था। मुब्रा, मेरी जान, आई एम सॉरी। वलीद ने उसे शिद्दतों से अपने बाजुओं में भरा था। इंतहाई जुनूनियत से वो उसका दुपट्टा खींचते हुए उसके ऊपर झुका था। वलीद, बस मेरी जान निकल रही है, मैं मर जाऊंगी, प्लीज ना करें। वो फूट फूट कर रो रही थी। मैं अपनी जान के सारे दर्द दूर कर दूंगा, सारी थकन उतार दूंगा, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट। वो यके बाद दीगरे उसके वजूद पर सब कुछ नोचता बेखुद हुआ था। मुब्रा बस नफी में सर हिलाती रह गई। वलीद ने उसके चेहरे और जिस्म पर दीवानावार अपनी शिद्दतों के निशान छोड़ने शुरू कर दिए। उसके सारे जज्बात खुलकर बेलगाम हो रहे थे। वलीद, मुझ पर रहम करें। मुब्रा हसीब खान उस लम्हे बस इतना ही कर सकती थी। वो उसे पूरी तरह बेबस करती हुई उस पर हावी हो गया। वलीद, उसकी चीखें बेसाख्ता सी थी। मुब्रा की आंखें उबलने को थीं। वलीद, मेरा बच्चा। वलीद की जुनूनियत के जेर असर उसकी सांस टूटना शुरू हो गई। बाहर बारिश जोरों पर जारी थी। वलीद रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो एकदम ऊपर को उठी और वलीद की नजर ऐन उसके नीचे सुर्ख होते बिस्तर पर पड़ी। उसने सांसों की योरिश में सरगोशी की थी। मुब्रा की आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थीं। वलीद ने उसे यकदम उल्टा किया था। पूरा बिस्तर सुर्ख होता जा रहा था। जोया और निमरत दोनों को बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि मुरवान को काबू में रखने के लिए उसे रोहा से बदगुमान करना सबसे जरूरी था। वो दोनों जानती थीं कि अगर मुरवान ने हाथ खींच लिया तो वो पैसे पैसे को मुहताज हो जाएंगी। फरहान और नौमान बैक वक्त फैमिलीज का सारा खर्चा खुद नहीं उठा सकते थे, जबकि साथ साथ इस्लामाबाद जैसे शहर में प्लॉट की किस्त भी अदा करनी हो। फिल वक्त उन दोनों के बीवी बच्चों का सारा खर्चा एक तरह से मुरवान ही झेल रहा था। उन दोनों ने बड़ी चालाकी और होशियारी से राबिया को भी अपने साथ मिला लिया था। फरहत भले ही बहुत दूर अंदेश सही, लेकिन बेटी के मानने में वो डंडी मार जाती थी और इस फैमिली पॉलिटिक्स की बहुत सारी बातें काशिफ मिर्जा के कानों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। वो भी ऐसा ही एक दिन था। राबिया ने मुरवान को कॉल करके 2-3 लार्ज साइज पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी। वो तीनों नीचे टीवी लाउंज में बैठी पिज्जे के मजे उड़ा रही थी जब राबिया ने रोहा को सीढ़ियां उतरते देखा। जोया भाभी, वो आ गई। राबिया जल्दी से जोया के कान में घुसी थी। उन तीनों ने उसे यूं कर दिया जैसे देखा ही ना हो। अलबत्ता वो तीनों ड्रामा रचाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मैं तो कहती हूँ मुरवान जैसा भाई खुदा सबको दे। बस मेरी एक कॉल करने की देर होती है और मुरवान मिनटों में सब कुछ हाजिर कर देता है। अब भी हालांकि मुझे बस एक ही पिज्जा काफी था, लेकिन मेरे कहने पर उसने 3 भिजवा दिए। वो आखिरी सीढ़ी पर थी जब उसे राबिया की आवाज सुनाई दी। हाँ तो और क्या, मुरवान बड़े खुले दिल का बंदा है। इतनी मोहब्बत से अपने घर वालों पर खर्च करता है, तभी तो अल्लाह ने उसे इतना दे रखा है, जोया ने कहा। रोहा एक लंबी सांस भरते हुए उन तीनों के करीब आ गई। वाह भाई, मेरे शोहर की ये अच्छाइयां सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि मैं सुन रही हूँ। ये मेरे पीठ पीछे भी ऐसे ही होती हैं। वो कमर पर हाथ रखते हुए बोली थी। रोहा, खामख्वाह हमारे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, जोया ने कहा। ये पिज्जे मुरवान ने भिजवाए हैं? उसने राबिया की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मैंने कॉल की थी उसे। तुम्हें कोई तकलीफ है? राबिया ने कंधे उचकाते हुए कहा। अरे नहीं, मुझे भला क्या तकलीफ होगी, बस मेरा भी दिल पिज्जा खाने को कर रहा था। अब मेरे शौहर की हक हलाल की कमाई से आए हैं तो मेरा भी तो पूरा हक बनता है ना इन पर। उसने आगे बढ़कर मेज पर पड़े दोनों डब्बे उठा लिए। रोहा, शराफत से इन्हें वापस रख दो। राबिया को गुस्सा आया था। तुमने खा लिया ना पिज्जा, अब ये मेरे हैं। वो एक सुलगती हुई मुस्कुराहट राबिया की तरफ उछालती हुई दोबारा सीढ़ियां चढ़ गई। कुछ देर बाद काशिफ मिर्जा घर आ गए। उनके आते ही राबिया ने वो रोना धोना डाला कि हद नहीं। जोया और निमरत दोनों उसके गम में बराबर की शरीक थी। इससे पहले भले ही उन्होंने कभी राबिया का साथ ना दिया हो, लेकिन आज वो उसके साथ थी। राबिया के मुंह में जाता निवाला खींच लिया इसने। अंकल, हम दोनों भी वहीं थी। मुंह फाड़ कर कह दिया कि मेरे शौहर की कमाई है और उस पर पूरा पूरा हक मेरा है, निमरा ने कहा। सितम यह कि फरहान और नौमान भी वीकेंड पर घर आए हुए थे। शाम होते होते अच्छा खासा तमाशा बरपा हो गया। फरहत ने मुरवान के आने का भी इंतजार नहीं किया था। उन्होंने उसी वक्त रोहा को नीचे बुलवा लिया। तुम आज बता ही दो कि आखिर तुम्हें मेरी बेटी से क्या तकलीफ है, वो गुस्से से बोली। आंटी प्लीज,
मैं उस वक्त तक कोई बात नहीं करूंगी जब तक मुरवान नहीं आ जाते। रोहा ने कहा। रोहा, बेटे आखिर मसला क्या है? काशिफ मिर्जा ने बेबसी से उसकी तरफ देखा था। अंकल, मुझे कोई मसला नहीं है, मसला इन तीनों को है, और मेरे ख्याल से आपको इन तीनों से ही पूछना चाहिए, वो जोर से बोली थी। तभी मुरवान की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था। चंद लम्हों बाद वो अंदर दाखिल हुआ और लाउंज में लगा तमाशा देखकर वहीं ठिठक गया। लो, मुरवान भी आ गया। उसे देखते ही राबिया ने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया था। अब मेरी बेटी के मुंह से निवाले भी छीनने लग गई है तुम्हारी बीवी। फरहत तेजी से बोली। मैंने किसी के मुंह से कोई निवाला नहीं छीना, रोहा चीख कर बोली थी। रोहा प्लीज, तुम ऊपर जाओ। मुरवान ने उसे उसकी हालत के पेश नजर मुसालहत से कहा। मैं कहीं नहीं जा रही मुरवान, मैं सब कुछ देखते भालते अंधी और बहरी बनकर इस घर में नहीं रह सकती। इन तीनों ने मेरे खिलाफ एक महाज खड़ा कर लिया है। उठते बैठते किसी न किसी बात पर ये तीनों मुझे कचोके लगाई जाती हैं। मैं कोई रोबोट थोड़ी हूं कि हर बात पर आंखें और कान बंद कर लूं। रोहा की बस हो गई। आखिर हुआ क्या है? मुरवान ने आगे को आते हुए पूछा था। राबिया ने रोते हुए सारा किस्सा मजीद मसाला लगाकर उसके गोश गुजार कर दिया। रोहास तो बस दुम बखुद खड़ी उसकी जबान के जौहर देख रही थी। सारी रौदात सुनने के बाद मुरवान ने बड़े तासुफ से रोहा की तरफ देखा। रोहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करता हूं तो तुम्हें घर वालों से उलझने की क्या जरूरत है? वो बोला। मुरवान, मैं उलझती हूं घर वालों से या घर वाले उलझते हैं मुझसे? रोहा जोर से बोली थी। आहिस्ता बोलो। सारा दिन का थका हारा वो घर आकर भी कटहरे में खड़ा हो गया था। उससे भी गुस्सा आ गया। मुरवान, अगर रोहा भाभी को अच्छा नहीं लगता तो आज और अभी से तुझे कोई जरूरत नहीं है हमारे बीवी बच्चों पर खर्च करने की। जितना हमसे हुआ हम खुद मैनेज कर लेंगे। आज के बाद जोया या निम्रा में से कोई भी तुझसे कुछ नहीं मांगेगी। और राबिया, तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है मुरवान से कुछ भी कहने की। तुम्हें जो चाहिए हो अब्बू या हमसे कहा करो। फरहान ने कहना शुरू किया ही था कि रोहा ने उसकी बात काट दी। क्यों फरहान भाई, अब आपके प्लॉट की किस्तें अदा हो गई होंगी ना, इसलिए आपको अपने बीवी बच्चों पर खर्च करने का याद आ गया है। रोहा, जबान संभाल कर बात करो, फरहत ऊंची आवाज में बोली थी। आंटी, मेरी बात चाहे आपको बुरी ही क्यों ना लगे, लेकिन यह हकीकत है कि आपने अपने चारों बच्चों में सबसे ज्यादा तखसीस मुरवान के साथ की हुई है। आपको सारा पता था ना, इस्लामाबाद वाले प्लॉट के बारे में भी और इस बारे में भी कि इन दोनों की फैमिलीज का सारा खर्चा मुरवान उठा रहा है। लेकिन आप फिर भी खामोश रहीं क्योंकि आपके बड़े दोनों बेटे आपको ज्यादा प्यारे हैं, रोहा ने गला फाड़ कर कहा था। रोहा, दफा हो जाओ ऊपर। मुरवान उसका बाजू पकड़कर सीढ़ियों की तरफ धकेला। मैं कहीं नहीं जा रही। आज पहले इस बात का फैसला होगा कि निम्रा और जोया की बातों में ऐसा क्या है जो मेरी बातों में नहीं है। रोहा उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली थी। रोहा, मुरवान ने उसे इंतहाई दुरुस्त लहजे में तंबीह की थी। और शायद इस बात का जवाब भी मुझे पता है, और वो ये कि मैं इन दोनों की तरह मुनाफिक नहीं हूं। मुझे दोगलापन करना नहीं आता। मैं तुम्हारी इकलौती बहन की तरह मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाने आते। मेरी माँ ने मुझे हर दूसरे बंदे के आगे सर झुकाना नहीं सिखाया, वो ऊंची आवाज में कहती चली गई। और जिंदगी में पहली बार मुरवान का हाथ फिजा में बुलंद हो गया था, जो न जाने कैसे रोहा के गाल तक आकर रुक गया। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, ऊपर चली जाओ। वो उससे ज्यादा सख्त लहजे में नहीं बोल सकता था। मुरवान, जैसे उठा लिया, जैसे मार दिया, वो इंतहाई बेयकीन लहजे में कहती हुई सीढ़ियां चढ़ती चली गई थी। वो अपने मां बनने का पहला शर्फ खो बैठी थी। लेडी डॉक्टर ने उसकी डीएनसी रिकमेंड की थी। एक तो उसकी प्रेगनेंसी शुरू से ही बहुत कमजोर थी, ऊपर से उसे किसी भी किस्म का रेस्ट मुहैया नहीं हुआ था। अस्पताल में पहुंचने से पहले ही उसका मिसकैरेज हो गया था। इसके बाप को भी इतला कर दे। अस्पताल में उसके पास सिर्फ वलीद और शमीम थे। अम्मी, वो सारा कसूर मेरा ही निकाल देगा, वलीद ने सर झटकते हुए कहा। वलीद, इधर देख मेरी तरफ। तूने कुछ किया है ना इसके साथ? उन्होंने पूछा। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, वो झुल्ला कर बोला। फिर एकदम बैठे बिठाए इस कदर ब्लीडिंग कैसे हो गई? वो बोली। अम्मी, इसकी तबीयत सुबह से ठीक नहीं थी। मैंने उसे कहा भी था कि छुट्टी कर ले, लेकिन वो मेरे सर चढ़कर कॉलेज चली गई, वो जोर से बोला। शमीम बस तासुब से उसे देख कर रह गई। मुझे दे फोन मिलाकर, कम से कम इसके माँ बाप को तो इतला कर दें, उन्होंने कहा। वलीद ने चुपचाप हसीब खान का नंबर मिलाकर मोबाइल उन्हें पकड़ा दिया। बड़ी सरसरी सी अल्फाज में उसने हसीब खान को मुबरक के मिसकैरेज की खबर कर दी थी।
उन पर तो जैसे एक पहाड़ टूट पड़ा था। आपदा को तो चंद सानिये तक उस बात का यकीन ही ना आया। वो दोनों उसी वक्त मोटरसाइकिल पर अस्पताल पहुंचे थे। रास्ते में ही हसीब खान ने खुबाब को भी कॉल कर दी थी। शुएब लाहौर अपनी ड्यूटी पर होता था और जुहेब मुल्तान चला गया था, सो फिल वक्त खुबाब ही था। कहाँ है मेरी बच्ची? आपदा भागती हुई शमीम की तरफ आई थी। वलीद उन्हें देखकर नजरें इधर उधर कर गया। अभी तो अंदर ही है, नर्स कह रही थी 5 मिनट तक वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। शमीम ने कहा। हुआ क्या था? उन्होंने पूछा। बहन, होना क्या है, आजकल की लड़कियां ध्यान थोड़ी रखती हैं। धड़ाधड़ चीजें खाती थी और दवाएं भी वक्त पे नहीं लेती थी। शमीम ने सारा मलबा मुबरा के सर ही धर दिया था। 5 मिनट बाद उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। खुबाब भी आ गया था। आपदा तो बस मुबरा के बेजान वजूद को देखकर साकित रह गई। उसमें आंख खोलने तक की हिम्मत नहीं थी। अम्मी, बड़ी मुश्किलों से उसके लबों से निकला था। हाँ मेरी बच्ची। आपदा ने उसके पास बैठते हुए उसके बालों में उंगलियां चलाई थी। अम्मी, मेरा बच्चा। वो बोली तो आंखों से आंसू बह निकले। खुदा का शुक्र अदा कर मुबरा कि तेरी जान बच गई। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, फिर नवाज देगा। रोना बनकर मेरा बच्चा, बस कर दे। वो उसका सर अपनी गोद में रखते हुए उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी थी। मुबरा, तू तो मेरा शेर बेटा है ना। मैं क्या कहता हूँ भला कि मेरे 3 नहीं 4 बेटे हैं। हौसला कर मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, अल्लाह फिर तेरी सुन लेगा। हसीब खान ने उसका हाथ थपथपाते हुए कहा था। मेरी एक बार कान खोल कर सुन लो वलीद, अगर इस सब में तुम्हारा जरा सा भी हाथ निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वलीद के इंतहाई करोफराना तासुरात देख देख कर खुबाब की बस हो गई थी। मैंने कुछ नहीं किया। वो उसकी आंखों में देखते हुए वहां से चला गया। 4 घंटे बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अम्मी, मैंने आपके साथ जाना है, वो रोते हुए कह रही थी। हाँ मेरा बच्चा, मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी तुझे, आपदा ने कहा। और शमीम को यह फिक्र पड़ गई थी कहीं मुबरा के मुंह से सच न निकल जाए। उसने कॉलेज से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। जाहिर है डीएनसी के फौरन बाद वो सफर तो नहीं कर सकती थी। 1 हफ्ते बाद शमीम के कहने सुनने पर वलीद उसे लेने आ गया था। आपदा तो उसकी शक्ल देखकर ही उस पर बरस पड़ी थी। मुबरा कहीं नहीं जाएगी जब तक इसका ट्रांसफर नहीं हो जाता। तुम्हें मौत पड़ जाती है ना उसे स्टाफ तक छोड़ने और लेने के लिए, तो इसके भाई अभी जिंदा हैं। वो उसे कॉलेज छोड़ भी आया करेंगे और ले भी आया करेंगे। उन्होंने बबांगे दहल कह दिया था। मुबरा के ट्रांसफर को तो आप भूल जाएं आंटी, यहाँ लड़कियों के कॉलेज में भी सीट ही नहीं है, वो डिटाई से बोला। चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। मेरी बच्ची सुकून से अपने घर बैठी है और तुम भी सुकून से अपने घर जाओ, वो बोली। बहन, बात को ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। ये सब कौन सा हमने जानबूझकर किया है, बस खुदा ने ऐसे ही लिखा था। वलीद शौहर है मुबरा का, उसके लिए बुरा थोड़ी चाहेगा। बहन, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इससे मुबरा का अच्छा कब चाहा है। अब चाहेगा मेरी बहन, मैं वादा करती हूँ आपसे, वलीद खुद इसे स्टॉप तक छोड़ा करेगा और वापसी पर घर लेकर आया करेगा। मुझे इस धोखेबाज इंसान की किसी भी बात पर कोई एतबार नहीं है। मुबरा कहीं नहीं जाएगी, आपदा ने अटल लहजे में कहा था। और उन्होंने सच में मुबरा को उसके साथ नहीं जाने दिया। 1-1.5 हफ्ते बाद महीना खत्म हो गया और नए महीने के खर्चे दौड़ते हुए सर पर आ गए। शमीम के तो हाथ पैर फूल गए थे। वो एक बार फिर वलीद को लेकर उनकी मिन्नत समाजत करने आ गई। वलीद को एक प्राइवेट कॉलेज में जॉब भी मिल गई थी। एक बार फिर से वही रोना धोना, तरल्ले, मिन्नतें, वादे वईद, जो कि न जाने पूरे भी होने थे या नहीं। और एक बार फिर हसीब खान और आपदा अपनी ही बेटी से हार गए थे। वो एक बार फिर उस जहन्नुम में जाने के लिए तैयार थी। आपदा उसे बाजू से खींचते हुए अंदर कमरे में ले आई। मुबरा, तुझे क्या मिलेगा वहां जाकर, वो रो पड़ी थी। अम्मी, आपको पता है ना कि मैंने कभी हार नहीं मानी। बचपन से लेकर अब तक मैंने जिस भी काम का बेड़ा उठाया उसे हमेशा मुकम्मल किया है। मैंने कभी कुछ अधूरा नहीं छोड़ा। अम्मी, आपका कहा, अब्बू का कहा, शुएब भाई का कहा, हमेशा सबका कहा माना है। और जिंदगी में पहली बार मैंने आप सबका कहा रद्द करके वलीद से शादी की है। अम्मी, मैंने उसे अपनी मर्जी से चुना है, सिर्फ इसलिए कि उसने मुझसे कहा था कि वो सुधर जाएगा। सिर्फ इस बात पर यकीन करके कि शायद मेरे मुकद्दर से वो सुधर जाए, शायद मेरे मुकद्दर से वो इंसान बन जाए। और मुझे इस रिश्ते को बीच में नहीं छोड़ना। मुझे इस रिश्ते को वहां तक लेकर जाना है जहां तक ले जाने की मुझ में हिम्मत है। मुझे लड़ना है अब्बू। दुनिया क्या कहेगी कि अपनी मर्जी की शादी भी नहीं चला सकी। मुबरा रोते हुए कह रही थी। कोई कुछ नहीं कहेगा मेरी बच्ची,
दुनिया को किसी से कोई सरोकार नहीं है। हसीब खान ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। अब्बू सब कहेंगे, मैं हमेशा इस घर के एक कमरे के कोने में नहीं बैठी रहूंगी। मुझे बाहर निकलना है, सबसे मिलना है, सबको फेस करना है। सब यही कहेंगे कि मोबरा खान अपनी मर्जी की शादी को नहीं निभा सकी। अब्बू ये खेल थोड़ी है कि आज खेला और कल को तंग आ गए। मैंने रिश्ता जोड़ा है उससे, मैंने शादी की है उससे, शौहर है मेरा वो, और मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे, और मैं आखिरी दम तक पूरी कोशिश करूंगी उसे अपनी मोहब्बत से सुधारने की। मुझे किसी के मुंह से अपने लिए ये नहीं सुनना कि वो मुबरा हसीब खान जो जिंदगी में किसी मुकाम पर नहीं हारी, वो अपनी जिंदगी के सबसे अहम मरहले पर हार गई। मुझे ये नहीं सुनना कि मुबरा हसीब खान का अपने लिए लिया गया सबसे अहम फैसला ही गलत था। मुझे जाने दें अब्बू, वो मेरा ससुराल है, और अम्मी आप ही कहती हैं ना कि ससुराल मैके की तरह नहीं होता। मुझे जाने दें, मुझे उसे आजमा लेने दें, मुझे देख लेने दें कि मेरा दिल वलीद अहमद जैसे इंसान पर क्यों आ गया। मुझ में अभी बहुत हिम्मत है अम्मी, मुझे अभी और लड़ लेने दें। मुझे उस शख्स की आखिर देख लेने दें, ये देख लेने दें कि वो किस दिन अपने हाथों से मेरा गला घोंटेगा। वो अपने आंसू साफ करते हुए उठ खड़ी हुई थी। उसकी और रोहा की काफी दिनों से सर्द जंग चल रही थी, और मोरवान ने कई बार उसकी जाने मुसालहत की पेशरफ्त की थी, लेकिन इस बार रोहा ने उसकी कोई भी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया था। यह दूसरी बार हुआ था कि मोरवान ने उसे सिर्फ और सिर्फ अपना साथ देने पर अपने पूरे घर वालों के सामने बेइज्जत किया था, पूरे घर वालों के सामने उस पर हाथ उठाया था। कई बार तो उसके दिल में आया कि साथ को कॉल करे और चुपचाप उसके साथ चली जाए, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गई कि वो अब सिर्फ उसका मैका नहीं था, वो साथ की बीवी का ससुराल भी था, और उसके जाकर वहां बैठ जाने से उसे शिकवे शिकायत हो सकते थे। वो भी मामूल का ही एक दिन था जब उसे हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ। पहले पहल तो वो उसे गैस प्रॉब्लम समझी, लेकिन जब वो शिद्दत पकड़ता गया तो अंदाजा हुआ कि लेबर पेन ही था। तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब उसने मुरवान को कॉल की। मुरवान ने फौरन ही उसकी कॉल रिसीव कर ली। हाँ रोहा, वो जल्दी से बोला। मुरवान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मुसलसल दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे अस्पताल ले जाएं। वो बेड पर बैठी लंबे लंबे सांस ले रही थी। मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। मुरवान ने इतना कहकर कॉल काट दी, और वाकई 5 मिनट बाद वो घर आ भी गया था। रोहा, मेरी जान क्या हुआ? वो भागता हुआ कमरे में आया था। उसी लम्हा रोहा को शदीद किस्म की दर्द की लहर उठी। वो बस दरवाजे का कोना थाम कर अपनी चीख को मुंह में दबाती रह गई। रोहा, मैंने एम्बुलेंस को कॉल की है, बस 5 मिनट तक आ जाएगी। वो उसका निढाल सा वजूद दोबारा से बिस्तर पर बिठाते हुए बोला। एम्बुलेंस को क्यों कॉल की? गाड़ी कहाँ है? रोहा ने अचरपे से उसकी तरफ देखा। वो गाड़ी सर्विस के लिए दी हुई है। मुरवान ने उससे नजरें चुराई थी। मुरवान, मुझसे झूठ ना बोले, अभी 2 दिन पहले अपनी गाड़ी की सर्विस करवाई है। रोहा ने उसका झूठ पकड़ लिया। यार, मैं कह रहा हूं ना, एम्बुलेंस आती ही होगी, वो उसके पास बैठते हुए बोला। मुरवान, इधर देखिए मेरी तरफ। रोहा ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। गाड़ी कहाँ है? उसने पूछा। रोहा, गाड़ी भी यही है, हम एम्बुलेंस में चले जाएंगे तो फिर क्या है, वो बोला। मुरवान, मैंने वो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ सैर सपाटों के लिए नहीं ली थी, मैंने वो गाड़ी इसी किस्म के मुश्किल वक्त के लिए ली थी। आखिरी बात पूछ रही हूँ कि गाड़ी कहाँ है? उसने गुस्से से मुरवान को देखते हुए पूछा। वो दरअसल गाड़ी लेकिन उसने रोहा की बात काट दी। और मुझसे झूठ ना बोलना, उसने उंगली उठाकर कहा था। गाड़ी एक दोस्त ने मांगी थी, 2 दिन पहले उसे दे दी, वो बोला। कौन सा दोस्त? अब तुम्हें क्या बताऊं कौन सा दोस्त? मुझे उस दोस्त का नाम बताएं, मैं अभी उसे कॉल करके कहती हूँ कि गाड़ी वापस करके जाए, मुझे उसी गाड़ी में अस्पताल जाना है। रोहा को फिर से दर्द उठा था। वो बस बिस्तर की चादर मुट्ठी में दबाती दोहरी होती चली गई। तभी बाहर एम्बुलेंस का हॉर्न सुनाई दिया। रोहा, यार उठो, एम्बुलेंस आ गई है। मुरवान ने उसे दोनों कंधों से थाम कर उठाना चाहा, लेकिन उसने मुरवान के दोनों हाथ बुरी तरह झटक दिए। मैंने पूछा है गाड़ी किसको दी? वो अपने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए बोली थी। रोहा, जिद करने का वक्त नहीं है, तुम्हारी इस फजूल से जिद की खातिर हम दोनों इस बच्चे को खो देंगे। मुरवान जरा गुस्से से आगे बढ़ा। मुरवान, खबरदार जो आप मेरे पास भी आए तो मुझे अभी इसी वक्त बताएं कि गाड़ी किसको दी है, वो चीख कर बोली। वो फरहान भाई के किसी जानने वाले को दी है। मुरवान ने सच बोलना ही मुनासिब समझा। रोहा के होंठों पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट उभर आई।
مروان اس کی نظروں کی تاب نہیں لا سکا تھا۔ روحاں، میری جان، میرا جو گریبان کھینچ رہے بعد میں کھینچ لینا، اس وقت اسپتال چلو۔ وہ دوبارہ اس کی طرف بڑھا۔ روحا اس سے 2-4 قدم پیچھے ہو گئی۔ مروان، بھلے ہی میں اس کمرے میں آج مر جاؤں لیکن ایمبولینس میں اسپتال نہیں جاؤں گی۔ کپ کپاتے ہوئے لبوں سے بمشکل کہتے ہوئے اس نے اپنا سیل اٹھایا اور ساجد مغل کو کال کی۔ ابو، آپ کہاں ہیں؟ مارے درد کے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں شاپ پر ہوں، کیا ہوا؟ وہ اس کی آواز سن کر ہی بوکھلا گئے۔ ابو پلیز، ابھی اور اسی وقت آ جائیں، مجھے اسپتال جانا ہے پلیز۔ وہ بے دم سی ہو کر بستر پر گر گئی تھی۔ روحا، بچے میں ابھی آ رہا ہوں، 5 منٹ۔ روحا نے زور سے اپنا موبائل دور پھینکا تھا۔ روحا، یہ مجھے نیچے دکھانے کا وقت نہیں ہے پلیز۔ مروان نے ایک بار پھر اس کی منت کرنی چاہی۔ مروان، اگر اس وقت آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں نا تو پلیز مجھ سے دور چلے جائیں۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ مروان نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک بار پھر اپنے درد کو برداشت کرتی بستر پر اوندھی دوہری ہوتی چلی گئی۔ روحا پلیز یار۔ مروان صحیح معائنوں میں رونے کے قریب ہو گیا۔ اس سے اپنی بیوی اور بچہ دونوں ہاتھوں سے نکلتے نظر آ رہے تھے، لیکن روحا پر اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں تھا۔ 5 منٹ بعد ہی اسے نیچے گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور چند لمحوں بعد ہی ساجد مغل اور کوکب بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے۔ روحا، بچہ کیا ہوا؟ کوکب کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ امی، مجھے اسپتال لے چلیں۔ روحا کی سانسیں ٹوٹنے لگی تھیں۔ ساجد مغل نے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ یہ مروان سے پوچھ تاچھ کرنے کا وقت بالکل نہیں تھا۔ مروان بھی ان کے ساتھ ہی فرحت کو لے کر اسپتال پہنچا تھا۔ روحا کی ڈیلیوری شاید نارمل ہی ہوتی، لیکن زیادہ وقت ہو جانے کی وجہ سے اس کی نارمل ڈیلیوری میں پیچیدگیاں ہو گئی تھیں۔ مائنر آپریشن کرنا پڑے گا، لیڈی ڈاکٹر نے لیبر روم سے باہر آتے ہوئے کہا، اور کچھ دیر بعد اسے آپریشن تھیٹر میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس نے اپنی ہی جیسی ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا تھا، جسے اپنے بازوؤں میں لیتے ہوئے مروان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ چینج کر کے واش روم سے نکلی تو ولید ابھی تک بستر میں ہی تھا۔ ظاہر ہے اس نے کون سا 32 کلومیٹر دور جانا تھا جو اس کی طرح صبح صبح اٹھ کر ہی تیار ہو جاتا۔ بال باندھ کر اس نے ہلکا سا میک اپ کیا، مدھم سی لپسٹک لگائی اور جوتے پہننے لگی۔ ولید اسے کل شام ہی واپس لے کر آیا تھا۔ ایک جھٹکے میں ہی وہ اپنی عمر سے کہیں آگے چلی گئی تھی۔ ایک نظر دیکھنے میں تو استحقان ہی محسوس ہوتی تھی۔ چپ چاپ اپنا بیگ اور چادر اٹھا کر وہ باہر نکلنے لگی تھی جب ولید نے اسے پکار لیا۔ جانے لگی ہو؟ وہ بس رک کر اسے سوالیہ سا دیکھنے لگی۔ رکو، میں چھوڑاتا ہوں اسٹاپ تک۔ وہ بعد نخواستہ سے اٹھا اور اپنے جاگرز پہننے لگا۔ وہ مبرہ خاموشی سے باہر نکل گئی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ جیکٹ اور گلوز پہن کر باہر نکل آیا تو وہ اپنی چادر لیے گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ بیٹھو، وہ بائک اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ واپسی پر مجھے کال کر دینا، میں چھوڑ آؤں گا تمہیں، وہ اسٹاپ پر رکتے ہوئے بولا تھا۔ مبرہ بس چپ چاپ سی بس میں چڑھ گئی۔ واپسی پر بھی بس اس نے ولید کو میسج ہی کیا تھا۔ بڑی بات تھی کہ وہ آ گیا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ معمول کے مطابق اپنے کاموں میں لگ گئی۔ دل کی حالت انتہائی سوگوار سی تھی۔ وقفے وقفے سے آنکھیں بھر آتی تھیں۔ رات تک وہ یوں ہی رم جھم ہوتی آنکھوں کے ساتھ کام نپٹاتی رہی۔ ولید کو فی الحال ایک پرائیویٹ کالج میں جاب ملی تھی۔ وہ وہاں انگلش کے 4 لیکچرز لیتا تھا اور پارٹ ٹائم ایک گمنام سے کوچنگ سینٹر میں جاتا تھا۔ وہ رات کو آیا تو مبرہ نے چپ چاپ اس کے آگے کھانا رکھ دیا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ مبرہ نے بس سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ اس رات کوشش کے باوجود ولید اسے پگھلا نہیں سکا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ارم کی منگنی طے ہو گئی تھی۔ مبرہ، پتر ارم کو منگنی کا جوڑا لے دے گی نا؟ شمیم کے لہجے کی شرنی ایسی کہ سامنے والے کو شوگر ہو جائے۔ میرے پاس صرف 2-3 ہزار ہیں اور ابھی پورا مہینہ کالج جانا ہے، وہ بولی۔ پتر کسی طرح لے دے، بس اور کچھ نہیں مانگتے تیرے سے۔ مجبوراً اس نے ایک کولیگ سے پیسے پکڑ کر اسے منگنی کا جوڑا لے کر دیا۔ آنے بہانے سے شمیم نے اس سے 10-20 ہزار مزید نکلوا لیے تھے۔ ولید نے البتہ اس بار اس سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی اور اس کی کسر شمیم نے پوری کر دی تھی۔ ارم کی منگنی پر مبرہ کے گھر والوں میں سے صرف ہنا اور حسیب خان ہی آئے تھے۔ آبدہ نے اس کے سسرال جانے سے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ شام گئے وہ لوگ فارغ ہوئے۔ ارم تو اس دن بالکل ہی مہمان بن گئی تھی، سو اس نے الماس کو ہی ساتھ لگا کر سارا پھیلاوا سمیٹا۔ حسیب خان بس اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر واپس چلے گئے تھے۔
रात के 10 बज रहे थे जब वो थकी हारी कमरे में आई। सारा जिस्म किसी फोड़े की तरह दुख रहा था। वलीद शायद वॉशरूम में था। वो जूते उतारते आईने के सामने खड़ी हो गई। तभी वो वॉशरूम से निकला था। टी शर्ट के साथ ट्राउजर पहन रखा था। मुब्रा बिना उसकी तरफ मुतवज्जा हुए कानों से इयररिंग्स उतारने लगी। वलीद धीरे धीरे चलता उसके पीछे आन खड़ा हुआ। उसने दोनों इयररिंग्स उतारकर दुपट्टे से ब्रोच उतारा था और उससे पहले कि दुपट्टा उतारकर एक तरफ रखती, वलीद ने उसके शानों से दुपट्टा खींच लिया। मुब्रा ने आईने में उसका अक्स देखा था। वो धीमा सा मुस्कुराया और उसकी कमर के गिर्द अपने दोनों बाजुओं से हल्का बना गया। फिर अपना चेहरा उसके दाएं कंधे पर रख दिया। आई एम सॉरी मेरी जान, वो सरगोशी में बोला था। ठीक है, वो बेहद आम से लहजे में बोली। अब नाराज ही रहना है, वो धीरे से उसकी कान के लबों को छूते हुए बोला। मैं आपसे नाराज नहीं हूं वलीद। नाराज तो बंदा तब होता जब किसी को उस नाराजगी का कोई एहसास हो। मुब्रा जान में बस होश गंवा बैठा था, मैंने जानबूझकर नहीं किया कुछ भी, वो अपना हिसार तंग करते हुए बोला। मुब्रा की आंखें गीली हो गई। मैंने कितनी बार कहा वलीद कि रुक जाए, आप नहीं रुके, आपने मार दिया उसे। वो घुट घुट कर रोती रही। आंसू गालों पर फैलते जा रहे थे। वलीद, वो उसकी तरफ मुड़ी। चले मान लिया कि मैं खूबसूरती में, कदकाठ में, रंगो रूप में, दिलकशी में, वजाहत में किसी भी तरह आपके बराबर नहीं हूं। चलें ये भी मान लिया कि आपने मुझसे शादी सिर्फ मेरी जॉब और मेरी कामयाबियों की वजह से की है, और ये भी मान लिया कि मोहब्बत सिर्फ मैंने की थी, आपने नहीं। लेकिन उसने जरा सा वक्फा लिया। वलीद उसे ही देख रहा था। वलीद, आपने निकाह किया है मुझसे अपनी मर्जी से, मैं बीवी हूं आपकी, तो क्या मैं बीवी के तौर पर भी इस कदर अर्जा हूं आपके लिए? आंसू कितार की सूरत बह रहे थे। वलीद ने एक बाजू उसकी कमर के गिर्द डालकर उसे ड्रेसिंग टेबल पर बिठा दिया, यूं कि मुब्रा का चेहरा ऐन उसके सामने आ गया। बहुत बेकरारी से उसने मुब्रा का चेहरा अपने हाथों में भरा था। वलीद, मैं जैसी भी हूं आपकी जिम्मेदारी हूं, आपकी इज्जत हूं, और आप मुझे सबके सामने दो कौड़ी का कर देते हैं। उसने बेदर्दी से अपने गालों को रगड़ा था। प्रॉमिस, अब कुछ नहीं कहूंगा, प्रॉमिस। शोहर तो अपनी बीवी मोहब्बत से बीवी को हूर बना देता है वलीद, और आपने क्या किया? आपने तो मुझे फकीर बना दिया। वो एकदम रोते हुए उसके सीने से आ लगी थी। मुब्रा, मेरी जान बस कर दो ना, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ इसी हद तक अहम हूं ना आपके लिए। वो एक बार फिर से बिखरने लगी थी और वलीद एक बार फिर से होश खोने लगा था। खुदा का वास्ता है वलीद, मेरी मोहब्बत को मेरा जुर्म ना बनाए, प्लीज मेरी मोहब्बत को मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ना बनाए। वो कहती जा रही थी और वलीद बस उसके वजूद में गुम होते हुए उसके कानों में सरगोशियां करता जा रहा था। वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई थी। कोकब उसे अपने साथ ही ले आई। फिलहाल उन्होंने उसे नीचे कमरा सेट कर दिया था। वो भी एक आम सा ही दिन था। उसकी बच्ची 3 दिन की हो गई थी। मुरवान उससे मिलने आया था। कल शाम काशिफ मिर्जा और राबिया भी होकर गए थे। आंटी, रोहा अंदर है, कोकब ने कहा। वो सर हिलाकर अंदर चला गया। रोहा अपनी बच्ची को अपने साथ लेटाए उसकी तरफ करवट किए उससे दुनिया जहान की बातें करने में मसरूफ थी। रोहा, कैसी तबीयत है अब? मुरवान की आवाज सुनकर वो चौंक गई। पिछले 3 दिन से उसने मुरवान से कोई बात भी नहीं की थी। अब भी वो चुपचाप करवट लिए पड़ी रही। रोहा, यार ऐसे तो ना करो, मुरवान उसके पास बैठते हुए बोला। हनूस खामोशी। रोहा, मुझे जो सजा देनी है दे लो, लेकिन मुझसे बात तो करो। वो रोहासा हो गया। मुरवान, चले जाए यहां से। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी शक्ल देखकर ही गुस्सा आने लगता है। जाए। रोहा, आई एम सॉरी। रोहन ने तड़क कर उसकी बात काट दी। खुदा के लिए मुरवान, बस कर दें, बस कर दें ये सॉरी सॉरी का तमाशा। वो कलस गई थी। रोहा, यार गलती हो गई मुझसे, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी यूं अचानक तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तबीयत अचानक खराब नहीं हुई, डॉक्टर ने डेट दे रखी थी मुझे, और मैंने आपसे कहा था कि मुरवान जहनी तौर पर तैयार रहें, लेकिन आपने जानबूझकर गाड़ी किसी को दे दी। वो धाड़ कर बोली थी। यार मुझे फरहान भाई ने मजबूर कर दिया था, उनके किसी अफसर को जरूरत थी, बस उसी वजह से। रोहा ने बस उसकी बात काट दी। हाँ तो ठीक है ना, फरहान भाई और उसका अफसर ही हैम हुए ना, मैं चाहे भाड़ में जाऊं। रोहा, मेरी बात, कोई बात नहीं सुननी मुझे, बस बहुत हो गया। वो दोबारा करवट बदल गई थी। दिन यूं ही गुजरते चले गए।
ولید نے شروع میں تو اس کی ڈیوٹی نبھائی، لیکن پھر اسی ڈگر پر آ گیا۔ دھیرے دھیرے مبرا پھر سے رکشے پر آ گئی اور سردیوں کے بعد گرمیاں مشکل ترین ہونے لگیں۔ آبدہ کا جب بھی فون آتا وہ یہی کہتی کہ ولید اس کی ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ حتی الامکان اس نے ولید کے گھناؤنے چہرے کو اپنے گھر والوں سے چھپانے کی کوشش کی تھی، جہاں تک ممکن ہوا اسے سدھارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بس ایک بار کہنے پر ہی وہ اس کے آگے سر جھکا جاتی تھی، چاہے وہ خود محتاج ہو جائے، لیکن کبھی کسی گھر والے کو نہ نہیں کی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، فطرتیں نہیں، سرشت کبھی نہیں بدلتی، اور یہ ولید احمد کی سرشت تھی۔ اسے صرف اپنی ذات سے پیار تھا، اسے بس بیوی کے روپ میں ایک کمانے والی نوکرانی چاہیے تھی جو اسے مل گئی تھی۔ وہ نہ صرف اس کا سارا گھر سنبھال رہی تھی بلکہ سارے خرچے بھی اٹھا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ دوبارہ اپنی روش پر واپس آ گیا، وہی ہر بات میں طنز تانے، جلی کٹی باتیں، بات بات پہ غصہ، تھپڑ مکے، جسمانی تشدد اور زیادتی، اور وہ جھیل رہی تھی، نہ جانے کس امید پر، بس چپ چاپ زندگی کو گھسیٹے جا رہی تھی۔ بھلا کیوں؟ صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے ماں باپ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اس کی کولیگز کیا کہیں گی، معاشرہ کیا کہے گا کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی اور پھر اسے نبھا بھی نہیں سکی، ہر ایک کو غلط کہہ کر، ہر ایک کو رد کر کے، گھر والوں کے خلاف جا کر اپنی پسند سے شادی کی اور پھر اسے سرخرو بھی نہ کر سکی۔ وہ ڈر گئی سب سے، اس جملے سے کہ سب نے منع کیا تھا۔ اور مبرا کی تو چلے پسند کی شادی تھی۔ ہماری سوسائٹی میں ارینج میرج کے بعد بھی ہزاروں لاکھوں لڑکیاں مبرا حسیب خان بن جاتی ہیں۔ وہ ایک پڑھا لکھا گنوار شوہر اور ایک اچڑ سسرال صرف اس لیے جھیلتی ہیں کہ کل کلاں کو لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اب کہ اپنا ازدواجی رشتہ قائم نہیں کر پائی، ماں باپ کیا سوچیں گے جب بیاہی ہوئی بیٹی در پر واپس آئے گی، بھابیاں منہ بھر بھر کے باتیں کریں گی، بھائی برداشت کریں گے یا نہیں، چھوٹی بہنوں کا کیا بنے گا، معاشرہ کیسی کیسی باتیں کرے گا، انگلیاں اٹھیں گی، الزام تراشی ہوگی، سسرال والے سارے شہر میں ذلیل کریں گے، اور سب سے بڑھ کر بچوں کا کیا بنے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ شوہر چاہے جلاد کا دوسرا روپ ہی کیوں نہ ہو، اسے ساری زندگی صرف اس لیے برداشت کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک باپ بھی ہوتا ہے، اور یہ سب حقیقت ہے۔ ہمارے مڈل کلاس فیملیز کے ماں باپ جو نہ جانے کتنی مشکلوں سے بیٹیوں کو بیاہتے ہیں، وہ بیٹیاں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچتی ہیں۔ کمانے والی پھر بھی تھوڑی ہمت کر جاتی ہیں، جو نہیں کماتی ان کے لیے وہ جہنم ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ بس اسی آس پر وہ ساری عمر گزار دیتی ہیں کہ شوہر کبھی تو ان کا ساتھ بھی دے گا نا، اولاد کبھی تو جوان ہوگی نا، ساس سسر کبھی تو اسے انسان سمجھیں گے نا۔ مبرا کا بھی یہی حال تھا، اس سے بھی وہی یہی امید تھی کہ شاید ایک دن سب ٹھیک ہو جائے، شاید ایک دن وہ ان سب گھر والوں کے دلوں میں جگہ بنا سکے، شاید ایک دن ولید اس کا ہو جائے، اور اس شاید پر وہ اپنی زندگی ہارتی جا رہی تھی۔ ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا تھا، ولید اسے دھنکنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا تھا، سانس ہمہ وقت اسے مبرا کے خلاف بھرے رکھتی تھی، سسر تو جب بھی بات کرتا کوئی نہ کوئی طنز کا تیر چلا کر ہی کرتا، اور یہی فرق تھا اس میں اور روحا میں، اور یہی فرق ہے اس ناول کی اصل تھیم بھی ہے۔ جب ہم چناؤ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر شکوے کا اختیار کھو دیتے ہیں۔ مبرا کا یہی حال تھا، وہ شکوے کا اختیار کھو چکی تھی۔ ولید احمد سراسر اس کا ذاتی چناؤ تھا، جبکہ روحا وہ مروان مرزا کا چناؤ تھی۔ اس کی شادی اس کے ماں باپ نے اپنی مرضی سے کی تھی، سو وہ ڈنکے کی چوٹ پر ان سے سب کچھ کہتی تھی، ببانگے دہل شکوہ کرتی تھی، پورے حق سے میں کیا کر بیٹھتی تھی۔ ماں باپ ہمہ وقت اس کے ساتھ تھے، اس کے برابر کھڑے ہو کر وہ مروان کو سرزش کرتے تھے، اور یہ سبھی حقوق مبرا حسیب خان کھو چکی تھی۔ حالانکہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ تھے، لیکن پھر بھی اس شخص کے ساتھ رہنا اس کی اپنی چوائس تھی۔ اور یہاں ایک بات، یہ صرف ہمارے کہنے کی بات ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنا ظلم کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہر تیسری لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مبرا کی تو چلے لو میرج صحیح، ارینج میرج میں بھی ایسا ہوتا ہے، شوہروں کا کفر ہی نہیں ٹوٹتا، سسرال جہنم بن جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں مبرا جیسی لاتعداد لڑکیاں،
जो बस मजबूरियों में जकड़ी जाती हैं। वो कमा नहीं सकती, ऊपर से बच्चे हो जाते हैं, गरीब मैका, नाते माँ बाप, बीमार माँ, अनब्याही बहनें। सोचने को बड़ा कुछ होता है, लेकिन मुबरा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मोहब्बत में अंधा हो जाना माफ किया जा सकता है, लेकिन इस मोहब्बत की खातिर जानवर बन जाना किसी तौर पर काबिल माफी नहीं। एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की जिसके घर वाले भी उसके साथ हों, उससे पहली गाली और पहले थप्पड़ पर ही स्टैंड ले लेना चाहिए था। उसने जो जुल्म सहा जानबूझ कर सहा। वलीद जैसे शोहर को शह दी जो किसी जानवर से कम नहीं था। स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप अपने वजूद से जुड़ी मजबूरियों को खत्म कर सकते हैं, उन्हें पसे पुश्त डाल सकते हैं, तो स्टैंड जरूर है। दफा मारे ऐसे शख्स को जिसे कदर ही नहीं। रह गई रोहा, तो पूरी तरह जस्टिफाई उसे भी नहीं कर सकते। माना कि उसकी फितरत ही ऐसे थी, समझौता न करने वाली, लेकिन जहां तक मुमकिन हो उसने किया। लेकिन जब शौहर बीवी के अखराजात अच्छी तरह पूरे करे, तो फिर घर वालों पर खर्च करने से नहीं रोकना चाहिए। दरअसल रोहा को गुस्सा जोया और निमरा पर था। राबिया भी साथ ही रगड़ी गई, और यहां आकर मुरवान ने इंसाफ नहीं किया। और अफसोस है उन मर्दों पर जो इंसाफ नहीं कर पाते। होते हैं ऐसे लातादाद शौहर जो घर वालों के आगे बीवियों को डिफेंड नहीं कर पाते, सारी उम्र बहन भाइयों पर पालते रहते हैं, और आखिर में वही बहन बहन ठोकर मारकर रास्ते से हटा देते हैं। ये हमारे हर दूसरे घर की कहानी है, और हर दूसरी लड़की का अलमिया है। किसी को शौहर अच्छा नहीं मिलता, किसी को ससुराल अच्छा नहीं मिलता, किसी की नंदें तेज होती हैं, किसी को जेठानियां दबा लेती हैं, और यकीनन ऐसे केसेस भी हैं जहां बहुएं अच्छी नहीं होती। शौहर या तो शकी या जालिम या निकट्टू या काट के उल्लू, बस रोना ही रोना है। और खुशकिस्मत होती हैं वो लड़कियां जिन्हें शौहर और ससुराल दोनों अच्छे मिल जाए। और आप कमेंट्स में मेंशन जरूर करें कि शौहर और ससुराल दोनों किसके अच्छे हैं, या बस इतना लिख दें कि खुशकिस्मत तरीन कौन कौन है।